Jai Hind, Namaskar. With your permission, may I resume, sir? May I start? Respected Dr. Sudhanshu Trivedi ji, respected Professor Santishri Pandit ji, VC JNU, Madam Hemangi Sinha ji, Shri Jagdish Mukhi ji, Professor Rubina Mittal, General Kulkarni, I can see from here, all the distinguished guests, students, it is my absolute proud privilege to stand in front of you for this very interesting panel discussion on Indian knowledge system. Let me tell you, when this idea came to collaborate with World Intellectual Foundation, I would just take a minute to tell you what we are doing here. On the eve of 75 years of celebration of our Samvidhan, ma'am, we had taken a lot of initiatives to conduct special lectures and panel discussions. In that series, we thought that we will collaborate with World Intellectual Foundation. World Intellectual Foundation is a Delhi-based think tank working towards positive narrative building of India. Dr. Ambedkar International Center is also working on the similar lines. We have the mandate to work on socio-economic transformation studies and Buddhist studies. In that vertical, we organize a lot of guest lectures, panel discussions, and that is how we all are here today to listen to the interesting discussion on Indian knowledge system. We have here Professor Rubina Mittal, who is the Director of Research and Innovation at WIF. She has been Professor of Operation Research at University of Delhi. We have this panel discussion being moderated by Ms. Hemangi Sinha, a lawyer by profession and a social worker by passion. When I had gone to meet Sudhanshu sir to invite him for this, I had asked him that, and I had conveyed him that, sir, we will take very less time in introduction and occupying the stage as a MC or as a speaker, because everybody is here to listen to you. And that is what I conveyed to VC JNU ma'am also. आपको सुनने के लिए आए हैं. So just to complete the formalities, let me ask my team to felicitate the guests. As a token of gratitude, may I request honorable panel members to receive the token of gratitude from DIC and WIF. May I request Professor Rubina Mittal to kindly felicitate our guests. Thank you for the acceptance, Honorable VC ma'am and Dr. Trivedi. Without further ado, let me now hand over the stage to Madam Hemangi Sinha for the interesting panel discussion on Indian knowledge system.
थैंक यू सो मच आकाश जी। मैं हिमांगी सिन्हा पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ और विशेषकर हमारे पैनलिस्ट विद्वज्जनों का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। विश्व की सबसे ज्ञानी, पुरानी और जीवित सभ्यता इसी मूल मंत्र के आधार पर पली बढ़ी। हम इसके धारक हैं, हम इसके वाहक हैं। हम उन ज्ञानी महान ज्ञानियों के वंशज हैं, हम भारतीय हैं। आज हम इंडियन नॉलेज सिस्टम पर चर्चा करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जो एंशिएंट विजडम और मॉडर्न नॉलेज को मिलाकर किस तरह हम समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं, इसका एक प्रयास है। इंडियन नॉलेज सिस्टम को सन 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक डिपार्टमेंट के तौर पर सम्मिलित किया था। इंडियन नॉलेज सिस्टम का कोर बिलीफ है वेल बीइंग ऑफ ऑल। इसका लक्ष्य है हार्मोनियस सस्टेनेबल लाइफ फॉर इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड द वर्ल्ड। सो मैं अपनी सबसे पहला क्वेश्चन मैं दोनों ही हमारे पैनलिस्ट से पूछना चाहूँगी कि सर, हमारी सभ्यता, भारतीय सभ्यता 5000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है या अधिक की है, मैं कहूँगी, जो विज्ञान, दर्शन, नैतिकता में अद्वितीय उपलब्धियों से भरपूर है। सर, हाउ डू यू सी द इंडियन नॉलेज सिस्टम कंटिन्यूइंग टू शेप इंडियाज आइडेंटिटी टुडे? सर फर्स्ट आप बताएं, फिर मैम, वीसी मैम से। When we talk about the Indian knowledge system, I think first we have to understand the word. Indian knowledge system is not that much appropriate because India itself is an ecosystem of knowledge. क्योंकि भारत का नाम ही है भारत। भा का अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश और रथ का अर्थ होता है लगा हुआ, which is in perpetual pursuit of knowledge. तो भारत means it is with the conjunction of two Sanskrit words, भा, इसीलिए इसी से आपने देखा होगा सूर्य का पर्यायवाची भास्कर शब्द भी भा धातु से बना है। और रथ तो आपको सभी को पता होगा, कार्यरत हैं। भारत मीन्स दैट इज द लैंड विच इज इन परपीचुअल परस्यूट ऑफ द लाइट ऑफ नॉलेज। तो हमारा तो पूरा का पूरा सिस्टम ही नॉलेज के ऊपर बेस्ड है। और इसलिए जो भारत का नॉलेज सिस्टम है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझना, इसकी डेप्थ को समझना और इसके लेवल को समझना कई बार ये बाकी लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और हम ही उसके बारे में सही नॉलेज नहीं रखते और हम इस वजह से मिस इंटरप्रेट हो जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, इंडिया में नॉलेज के दो पार्ट्स हैं, एक वर्ल्डली नॉलेज और एक है स्पिरिचुअल नॉलेज। इसीलिए हमारे यहाँ एक विद्या और एक अविद्या। अविद्या इज नॉट ए बैड वर्ड। अविद्या का मतलब ऑल वर्ल्डली नॉलेज, जिसमें आप कहेंगे ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, मेडिकल वगैरह वगैरह, और इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये एक पार्ट ऑफ नॉलेज है दैट डील्स विद द वर्ल्ड। और दूसरी पार्ट ऑफ नॉलेज क्या है? विद्या की डेफिनेशन क्या है? सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वो जो मुक्ति की तरफ ले जाए। अब प्रॉब्लम क्या है कि वेस्ट में देयर वाज नो सच डिवीजन, तो दे गॉट कंफ्यूज्ड विद, उन्होंने अविद्या को विद्या मान लिया, वर्ल्डली नॉलेज को ही मान लिया कि साहब ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। और यहीं पे एक डिफरेंस है, जो हमारे यहाँ विद्या के लिए पात्रता की बात कही गई है, अविद्या के लिए कोई पात्रता की आवश्यकता नहीं है। फॉर एक्वायरिंग एनी नॉलेज यू कैन एक्वायर फ्रॉम एनी सोर्स, एनीवेयर, एनी टाइम इन योर लाइफ. If you are a student of economics and you got developed any interest in history, within few years you read 50-60 books of history and you will be considered as a very knowledgeable person of history. आज तो नेट पे भी अवेलेबल है। बट विद्या के लिए पात्रता की जरूरत है। फॉर अटेनिंग स्पिरिचुअल नॉलेज यू हैव टू फॉलो द सर्टेन रूल्स, you have to put certain restrictions on you, because that is not related to imparting certain information in your brain. That is related to transformation of your consciousness. जैसे आप बॉडी को एक्लेमेटाइज करते हैं तो उसके लिए सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस चाहिए, सही डाइट, डिसिप्लिन लाइफ, प्रॉपर एक्सरसाइज, सर्टेन रिस्ट्रेंट। हाउ यू कैन थिंक कि मेंटल स्ट्रेंथ के लिए कुछ चाहिए नहीं, जो मनाएगा वो करेंगे, जो मनाएगा जैसे करेंगे। नहीं साहब,
जो अपने माइंड को एक्लेमेटाइज करेगा वो कॉन्शियस एनर्जी को बेटर सस्टेन कर पाएगा। अब इतनी सी बात को ऐसा मिस इंटरप्रेट कर दिया गया कि दिस पर्सन वॉज वर्दी एंड दैट पर्सन वॉज नॉट वर्दी। इट्स नॉट देयर इवन इन टुडे। इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन 100 मीटर रेस, you are worthy only if you have done practice since several years. Otherwise, you will not be able to even qualify for Olympics. Forget about contesting or winning medal. So the same thing applies for your brain and consciousness also. You have to acclimatize your brain, then you will be able to attain or ascertain certain sort of knowledge. और लास्ट में मैं ये भी कहूँगा, ऐसा दुष्प्रचार किया गया हमारे यहाँ के बारे में कि साहब वो लोग लिखना नहीं जानते थे, इसलिए वेद जो है वो श्रुति परंपरा से आए। वेदों को श्रुति भी कहते हैं ना, सुन के आए। अब आप ये बताइए, वो लैंड जिसको एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस करने आते थे, एकदम सटीक एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस जो आज हजारों साल बाद भी एकदम सही हैं, जो जो प्लैनेटरी पोजीशंस बताई गई वो आज नासा के प्लैनेटरियम सॉफ्टवेयर में डालने पे एकदम सही आते हैं, जिसने आयुर्वेद जैसा डिटेल्ड मेडिकल साइंस दिया, जिसने वैदिक मैथमेटिक्स दी, जिसने उपनिषदिक फिलॉसफी दी, जिसके लिए आर्थर शोपेनहावर ने कहा कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम, जिन्होंने ज्योमेट्री दी, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री दी, जिन्होंने अलजेब्रा दिया, जिन्होंने नाट्य शास्त्र दिया, वो लिखना नहीं जानते थे। अगर कोई ये कहे तो वे व्यक्ति बेवकूफ नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, वो पागल हो सकता है। जो ये कहे कि इतना नॉलेज रखने वाले लोग लिखना नहीं जानते थे इसलिए ओरल ट्रेडिशन, नहीं साहब, वो एक सर्टेन थिंग थी जो ओरल ट्रेडिशन से ही हो सकती थी, क्योंकि ये लिखने वाली चीज नहीं थी, ये समझने वाली चीज थी। जैसे मैंने आपसे कहा कि संस्कृत के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं विच इज मोर रिलेटेड टू द फोनेटिक्स देन द मीनिंग। और आप सब ने भी अपनी जिंदगी में देखा होगा, आप नवरात्र में पूजा करते हैं तो एक दो बार या तो आपने बोला होगा या आपके घर पे आके पंडित ने बोला होगा, ओम ऐं हीं क्रीम बोला है ना। ये ऐं हीं क्रीम कोई वर्ड नहीं है, इट्स अ वाइब्रेशन, एंड वाइब्रेशन कैन बी टोल्ड ओनली बाय ओरल ट्रेडिशन। आप किसी को संगीत के राग लिख के नहीं बता सकते, संगीत के राग गाकर ही बता सकते हैं। और हमारा सारा का सारा ट्रेडिशन रिदमिक पैरामीटर्स में है, वेदों के मंत्र छंद में हैं, वहां से लेके रामचरितमानस की चौपाइयां छंद में हैं। तो चूंकि हमारा सब कुछ छंद है, इसलिए वो सिर्फ ओरल ट्रेडिशन से वो पोर्शन जा सकता था। अब किसी को ये पता ही नहीं है, जिसको वाइब्रेशन के बारे में नहीं पता, फोनेटिक्स के बारे में नहीं पता, उस वाइब्रेशन के सोनोग्राफिक इंपैक्ट के बारे में नहीं पता, तो वो इतना ही समझेगा। इसलिए मैं सिर्फ ऑन द लाइटर नोट, नॉट टू बी डिसरिस्पेक्टिंग एनीबडी, नॉलेज सिस्टम का ये है कि अगर आप पीएचडी की थीसिस का इवैल्यूएशन करना चाहें तो कम से कम पीएचडी पास तो होना चाहिए। केजी का बच्चा कहे कि मैं पीएचडी की थीसिस का इवैल्यूएशन करूंगा, तो उससे जो गलती होगी वही हुई है जाकर। जैसे आपने एबीसीडी सीखी होगी क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड में, क्लास थर्ड फोर्थ आते आते सब लोग इंग्लिश के सारे वर्ड्स पढ़ने लगते हैं। अब कोई कहे मुझे तो पूरी इंग्लिश आती है, आप शेक्सपियर, मिल्टन और वर्ड्सवर्थ के साहित्य की मीमांसा मैं कर सकता हूं। उससे कहा भाई तू अभी क्लास थर्ड में है। नहीं नहीं, अरे यही इंग्लिश का वर्ड लिखा भाई, आई नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड बट यू कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड एंड अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट वर्ड। वही हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में उल्टी सीधी चीजें नॉलेज सिस्टम में। जैसे मैं एक मजाक में एक बात कहता हूं, हम लोग बच्चे थे तो आपसे जैसे मैं एक वर्ड पूछूं, नाई वर्ड का क्या मीनिंग होता है हिंदी में, तो 10 में से 9 लोग कहेंगे नाई का मतलब बार्बर, बाल काटने वाला। अब इसमें बताता हूं, हम लोग बच्चे थे तो हमारे जो बार्बर था जो बचपन में आता था, उसने कहा देखिए साहब मजाक में कि लोगों ने गुरु की महिमा तो समझी है, जब तक गुरु कृपा नहीं होगी भगवान नहीं मिलेंगे, गुरु के नाई की महिमा नहीं समझी। तो उन्होंने कहा गुरु के नाई की महिमा कहाँ लिखी? कहा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख गए, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई। जब तक गुरुदेव के नाई की कृपा नहीं होगी तब तक गुरु की कृपा नहीं मिलेगी। अब मैं आपसे कहता हूं, ये हिंदी की अवधी भाषा में लिखा गया है, जिसमें नाई का अर्थ होता की तरह, लाइक दैट यू विल बी लाइक माई गुरु। अब अगर आप में से किसी को, जो लोग दिल्ली में पढ़े वाले हों, उन्हें
अवधी भाषा के उस नाई वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा, आज तो चलिए फिर भी थोड़ा हिंदी का प्रभाव बचा है, मे बी आफ्टर 500 ईयर्स जब प्योर इंग्लिश से ट्रांसलेशन होगा तो इस ढंग के डिस्टॉर्टेड मिस इंटरप्रेटेड ट्रांसलेशंस भी होंगे। इसलिए मैंने सिर्फ आपको इस संक्षेप में बताया कि इंडिया का नॉलेज सिस्टम और इंडिया का जो फंडामेंटल बेसिक सिस्टम है, उसकी जब तक हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा नहीं और हम इंजीनियरिंग का एनालिसिस कर रहे हैं, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री पढ़ा नहीं और हम मेडिकल का एनालिसिस कर रहे हैं, वो गलती हमसे हो रही है। I would just start off from where Sudhanshu ji left. The Indian knowledge systems. You take this. You take this. The switch is here. Yeah. Okay. Thank you. I hope you can hear me now. मैं एक है, मेरी हिंदी इनसे इतनी अच्छी नहीं हुई है। मैं तमिलनाडु की रहने वाली है। आप कोई यहाँ तमिल बोल सकते हैं? नहीं ना? तो मातृभाषा मेरा तमिल है। सो इसीलिए IKS, आई प्रेफर IKS बिकॉज भारतीय ज्ञान परंपरा JNU में नहीं चलेगी। क्यों? उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? BJP। तो पहले ही बता देंगे मैडम नॉट अलाउड। सो इसीलिए मैं IKS ही बोलूँगी। I would rather start from where he left off. See, IKS is a narrative architecture. वो सिर्फ यहाँ वहाँ तोड़ मोड़ के लगाने के लिए नहीं है। It is an alternative to the Western knowledge system. So ये Western knowledge system और हमारे में क्या फ़र्क है? वो यूनिफॉर्मिटी को बहुत पसंद करते हैं। वी आर अ धार्मिक सिविलाइजेशन। वी आर वेरी कंफर्टेबल विथ केओस। केओस लीड्स टू क्रिएटिविटी। कितना भी डिसऑर्डर है हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होती। बट आप एब्राहमिक रिलीजन से आप देख लो, सब एक है, एक भगवान है, एक किताब है, एक स्वॉर्ड है। हमें भगवान में भी चॉइस है। आप नास्तिक रहकर भी हिंदू रह सकते हैं, कोई और परंपरा में ये नहीं है। सो ये पहला है। दूसरा, फेमिनिस्ट सिविलाइजेशन, स्त्रीवादी। पुरुष सब पूछेंगे मैडम क्या नया बता रही है? मातृदेवो भव, पहली मातृ, पितृ बाद में ही आती है। और इंदिरा के कैबिनेट में कौन पावरफुल पोर्टफोलियो रखे थे? सरस्वती, ज्ञान की, आज ज्ञान के बारे में बोल रहे हैं। लक्ष्मी, प्रॉस्पेरिटी। और फाइनली दुर्गा, पार्वती। हम दशहरा सेलिब्रेट करते हैं, वो क्या है? आफ्टर ऑल द मेल गॉड्स वे डिफीटेड, इट वाज द फेमिनाइन पावर जो ईविल को पराजित किया। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ, और द्रौपदी इज द फर्स्ट फेमिनिस्ट, सिमन डे बोवार नहीं है। जो द्रौपदी पूछ सकती थी, कोई और पूछ सकते हैं आज भी। सो अब हम वी हैव टू री इंटरप्रेट। फर्स्ट वही है मेरा। सेकेंड, I would tell Hemangi, we are more than 10,000 years old. The राखी गर्गी, ये लेफ्ट वाले वोक वालों को आर्कियोलॉजी पसंद नहीं, क्योंकि आर्कियोलॉजी सच्चाई बोलती है। साइंटिफिक डेटिंग, कार्बन डेटिंग से इट हैज़ बीन प्रूव्ड वी आर 10,000 years old. मैडम आप पूछेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है, बिकॉज दो बड़ा झूठ हमें बता दिया गया है। क्या झूठ है? First, that facts are sacred, interpretations can vary. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का इतिहासकार हमारे स्वातंत्र्य के बाद उन्होंने बताया interpretations are sacred, facts can vary. So इसीलिए उनको आर्कियोलॉजी पसंद नहीं है। So they lie big, म्हणजे झूठ बोलो, गॉबल्स का थियरी है। झूठ बोलो, 10 बार झूठ बोलने के बाद that becomes the gospel truth. First है आर्यन इन्वेजन थियरी, कि हम लोग खाना पीना नहीं आता था, माटी दगड़ खाते थे, बाहर से आकर ही हमें अच्छा खाना सिखाया, मोगलाई, ये वो। ये झूठ है, क्योंकि 10,000 पहले हम ही वी वर एन आउटगोइंग सिविलाइजेशन।
जब यूरोपियन लोग दगड़ फेंक रहे थे, हम सिविलाइज थे। सो यहाँ से बाहर गए। और दूसरा द्रविडियन आर्यन डिवीजन, कि हम द्रविडियन लोग अलग है, आर्यन लोग अलग है, हिंदी संस्कृत। अब देखो, संस्कृत जैसा भाषा को बदनाम करने में बहुत बड़ा काम है। एनसीईआरटी किसी भी किताब ले दीजिए बिफोर द रिवीजन, ये सब वहाँ आप देख सकते हैं। सो बच्चों को जब आप ऐसे ये सब सिखाते हैं, मैं तमिलनाडु से आती हूँ, तमिल दिखती हूँ, आप सोचते हैं तमिल लोग शॉर्ट है, काले हैं, ये हैं। जेएनयू में जब मैं पहली आई थी तब सलवार पहनती थी, स्टूडेंट जब थी, लोग मुझे जाट समझते थे। सो इसीलिए वी आर अ मिक्स्ड रेस। सो ये द्रविडियन आर्यन इन्वेजन, रॉबर्ट कार्डवेल बोल के एक प्रीस्ट, क्रिश्चियन प्रीस्ट ने कन्वर्जन के लिए उन्होंने ये शुरू कर दिया। इसमें बेसिस बहुत कम है। सो वाइट वॉशिंग, ब्रेन वॉशिंग, ये बहुत बड़ा है। और मैं दो आइडियाज़ आपके साथ जोड़ूंगी। एक है, अमेरिका में ओरल हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, इंडिया में नहीं है। श्रुति एंड स्मृति, we were also great chroniclers, but also we believed in oral history, and we are the only civilization to mix science with spirituality. हम दोनों को अलग नहीं किया। And in life, as rightly said by Dr. Trivedi, you need both. So Indian knowledge system आज के लिए बहुत relevant है, because हम अब Western philosophy is in a crisis. उसका alternative क्या है? We are the alternative. So इसीलिए it is very very important. And हम भारतीय, हमें एक क्या है, नेगेटिव है, जो जब तक बाहर से लोग हमें अच्छे बताते हैं, हमको we don't praise ourselves. We are the most critical people in the world. आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर में भी कितना प्रश्न पूछेंगे। आप अमेरिका में कोई पूछते हैं ट्रम्प को? थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। आपने जो कहा वो हम सब इस बात से सहमत हैं, पर जो प्रॉब्लम है कि लोगों को कैसे समझाई जाए ये बात कि हम क्या थे, आज हम कहाँ खड़े हैं। और हम बताने जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि नहीं आप रूढ़िवादी हैं, नहीं स्टैग्नेट सोसाइटी आपका सभ्यता है, या फिर आप बहुत यंग सिविलाइजेशन है। जो हमको इन्फोर्स किया गया है सोचने समझने के लिए, आज तक जो भी हमारा एजुकेशनल सिस्टम है आज तक का, वो हमको हम पे थोपा गया है। हमको अपनी खुद की जो एक सभ्यता की जो तारीफ़ थी या जो सभ्यता के गुण थे, उनसे हमें दूर रखा गया है। आप जो कह रहे हैं हम उससे 100% अग्री करते हैं, परंतु जब हम सामान्य जनों के बीच में जाएंगे या हम अपने जो ऐसे हैं जो हमारे नहीं समझते हैं हमें, उनको समझाने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक रिलेवेंस बताना होगा। तो मेरा आपसे एक अगला सवाल ये होगा कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, दे हैव डेवलप्ड डीप नॉलेज इन फील्ड्स लाइक फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी, साइंस, विच गाइडेड द सोसाइटी। तो आज हम अपने उस विजडम को, हम एंशिएंट विजडम को किस तरह से इस प्रॉब्लम, हमारे जो आज सोसाइटी में प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए हम एंशिएंट विजडम का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो हम अपने सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, दूसरा ये होगा कि हम लोगों को बता पाएंगे कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये परंपरागत रूप से भारत में चलती आई है। तो मैं उसमें आप दोनों के विचार जानना चाहूँगी। देखिए, शांति श्री जी ने जो बात बताई और उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। वैसे तो ये इस समय देश के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे चर्चित विश्वविद्यालयों में से एक की कुलपति हैं। तो उन्होंने जो एक बात बोली, वहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ। हमारा नॉलेज बेस और आज का रेलेवेंस जो आपने कहा, ये बात मैं पहले बोल चुका हूँ, तो आई एम अगेन रिपीटिंग इट। हमारे जो वीक डेज हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो पूरी दुनिया मानती है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इसमें ऐसा तो नहीं कि केवल हमने दिया है। और इसमें 7 ही ग्रह माने गए हैं और सूर्य चंद्रमा को भी ग्रह माना गया है। फिर हमसे पूछा जाता है आप क्यों मानते हो सूर्य और चंद्रमा को ग्रह? अब भाई मान तो तुम रहे हो और उसके बाद हमसे पूछ रहे हो। अब मैं पूछना चाहता हूँ, संडे के बाद मंडे क्यों आता है?
मंडे के बाद ट्यूसडे क्यों आता है? व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड दिस सीक्वेंस? संडे पहले आना चाहिए, इट्स लॉजिकल। सूर्य सबसे बड़ा है ग्रह, और ग्रह की हमारी उनकी डेफिनेशन में भी अंतर है। अगर आप ये कहें कि बाय द साइज ऑफ प्लैनेट, तो जुपिटर के जो कई वो हैं उपग्रह, वो बुध से बड़े हैं साइज में। हमारे यहाँ राहु और केतु प्लैनेट ना होकर भी क्यों हमने माना है कि सन से कॉस्मिक एनर्जी का इंटरजंक्शन जहां जहां पे होता है उसको हमने ग्रह माना है। इट इज अ वेरी एडवांस वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट कि हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, रादर देन कि आप डेफिनेशन करें तो इतने मीटेरॉइड्स घूम रहे हैं, एस्टेरॉइड्स घूम रहे हैं, आप किस किस को डायमीटर के बेस के ऊपर एसेस करते रहेंगे कि उसका इंपैक्ट है कि नहीं। अब बताइए, सूर्य पहले आए समझ में आता है। अगर साइज के हिसाब से कहें तो सूर्य के बाद सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, तो उसके बाद थर्सडे आना चाहिए, फिर सैटर्न, तो सैटरडे आना चाहिए। अगर सन से डिस्टेंस पे लें तो द नियरेस्ट प्लैनेट टू सन इज मरकरी, तो सबसे पहले वेडनेसडे आना चाहिए, फिर उसके बाद फ्राइडे आना चाहिए, फिर मंगल आना चाहिए। ऐसा क्यों है भाई? संडे के बाद मंडे क्यों आता है? और ये पूरी दुनिया मानती है। उसका रीजन ये है, इसका पूरा ओरिजिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में है। जो हमारे यहाँ ये माना गया है कि दिन को 24 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहले दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसको कहा गया अहोरात्रि। अहोरात्रि में से ही आप आ उत्तरा हटा दे तो होरा बनता है, और इसी से ग्रीक में हॉरोस्कोप शब्द आया है, और उसके जो 12-12 पार्ट्स किए गए हैं उसी से अंग्रेजी का आवर शब्द आया है। वाई देयर आर 24 आवर्स इन ए डे? इंपेरिकल में 20 होने चाहिए तो 10 होते, 20 होते, 30 होते, वाई 24? बिकॉज वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये बताती है कि जब अहोरात्रि में डिवाइड करते हैं डे एंड नाइट में, तो देयर आर 12 होरा इन द डे एंड 12 होरा इन द नाइट। उसी से अंग्रेजी का आवर शब्द आया। अब देखिए, जिस दिन आप सूर्य का पहला होरा निकालेंगे तो 24 आवर्स के बाद, यानी जो 25th आवर आएगा, यानी नेक्स्ट दिन का पहला घंटा, वो आएगा सूर्य के बाद चंद्र का होरा। और चंद्र के बाद जो 24 घंटे के बाद 25वां घंटा लगेगा, वो आएगा मंगल का होरा। मंगल के बाद आएगा बुध का होरा। ये प्योरली साइंटिफिक कैलकुलेशन है। मगर जो आपने कहा, साइंस और स्पिरिचुअलिटी ऐसी एम्बेडेड है, हम सब ने ये अपने जीवन में सुना है, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। जब आप पूजा करते हैं, 9 ग्रह शांति का मंत्र जब पंडित बोलते हैं तो वो क्या है? अब सीक्वेंस पे ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य। भानु सूर्य, शशि चंद्रमा, भूमि सुत मंगल, बुधस्य, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करो भवंत। बिल्कुल हमारी रिलीजियस पूजा में वही सीक्वेंस यूज हो रहा है जो पूरी दुनिया आज मान रही है। दैट इज द प्रूफ कि सबने हमसे लिया। और ये केवल ऐसा भी नहीं कि किसी ने बैठ के कोई जिसे कहते हैं रिलीजियस प्रेयर बना दी, उसमें सीक्वेंस आ गया। इस सीक्वेंस का मैथमेटिकल बेसिस भी है, और वो मैथमेटिकल बेसिस हमारे इससे रिलीजियस प्रोसेस से इस कदर एम्बेडेड है कि दोनों को आप अलग ही नहीं कर सकते। इसीलिए वहां धर्म और विज्ञान में संघर्ष है, हमारे यहां संघर्ष नहीं है। हमारे यहां जब वेदों में आते हैं, सबसे पहले तो कहा जाता है कि भाई पहले तुम एक्सेप्ट करो कि तुम्हें नहीं पता है। तो वेदों में नासदी सूक्त है ना, नासदी सीत दानो नासी द्रजो नो वेमह परोव्यत किमा वरी वह कुकशक शर्मन नंबह किमा सीत गहनम गबीरम। सृष्टि से पहले क्या था, क्या था, वो ईश्वर को पता अथवा उसको भी नहीं पता। इतना एब्स्ट्रैक्ट और इतना ऑनेस्ट इंटरप्रिटेशन कहीं पर भी नहीं हो सकता। वो कहेगा प्योर लॉजिक करो और उसके बाद आके समझो। जो अभी शांतिश्री जी ने कहा फेमिनिस्ट की बात, तो हमारे यहां पहली बार तो शास्त्रार्थ करो। वी आर द ओनली सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड विच अलाउज डिस्कशन ऑन द रिलीजियस टेक्स्ट। बाकी कहीं अलाउड नहीं है। एक कहता जो कह दिया गया ओनली सरमन एंड प्रीसेप्ट, नो इफ एंड बट, अदरवाइज यू विल गो टू हेल। दूसरा कहता जो कहा गया सुन लो, चूं चपड़ की तो सरतन से जुदा हो जाएगा। सिर्फ हमारे यहां कहा गया आओ बैठो डिस्कशन करो, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट। और भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे चर्चित शास्त्रार्थ क्या है? मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच में। और उसकी जज कौन थी? मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। आई चैलेंज इन द इंटायर वर्ल्ड, पहले तो डिस्कशन का परमिशन हो, और 2 पुरुष डिस्कशन कर रहे हैं, और दोनों कौन? अपने टाइम के हाईएस्ट स्टालवार्ट।
आदि शंकर और आचार्य मंडन मिश्र, और उसका जज एक लेडी हो, उसके बाद कहते हैं महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था। सोचिए क्या टोपी पहनाई गई है हम लोगों को, और हमने कितनी आसानी से उन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है। और जो संस्कृत के बारे में कहा गया, संस्कृत कैसी भाषा थी कि उसमें यह भी है कि जब शंकराचार्य जाते हैं मंडन मिश्र के घर के लिए, तो वो पूछते हैं, वहां पे कुछ महिलाएं पानी भर रही हैं कि आचार्य मंडन मिश्र का घर कहाँ है, तो वो कहती हैं जिस गली के बाहर आपको लगे कि सफाई कर्मचारी भी जो है, सफाई करने वाला व्यक्ति भी वेदों के उपनिषदों की मीमांसा सहजता से बोलता हुआ काम कर रहा हो, समझ जाइएगा इसी गली में कहीं मंडन मिश्र का घर है। और फिर कहते हैं अंदर जाके क्या होगा, तो वो कहता है कि जहां पर आपको लगे कि, उसमें एक संस्कृत का श्लोक है, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती द्वारस्य दीनांतर सन्निरुद्धा जानीय तद मंडन मिश्र धाम। मतलब जहां तोता मैना जिस घर के मुंडेर पर बैठकर ये डिस्कशन कर रहे हो कि वेद स्वतः प्रमाणित हैं या प्रमाण करने की आवश्यकता है, समझ जाइएगा यही आचार्य मंडन मिश्र का घर है। इसका मतलब इतनी जन जन की भाषा थी कि महिलाओं से लेके और तोते तक उसको रिपीट कर रहे थे, मगर उसके बारे में इस प्रकार की बात आकर करने का प्रयास किया जाता है। और जो तमिल की बात आपने कही, अब यहाँ मैं थोड़ा साइंस की भी बात कहूँगा। एक तो तमिल और संस्कृत या अन्य भाषाओं में ऐसा झूठ परोसकर संघर्ष कराने का प्रयास किया जाता है। तमिल साहित्य का सबसे सम्मानित जो ग्रंथ है थिरुकुरल है, जिसमें 1330 पद हैं और जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो क्या है, अरम, परुल और काम। ये क्या है, यही जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा, धर्म अर्थ काम। तीसरे का नाम वहां भी काम है, यहां भी काम है, और तीनों उसी सीक्वेंस में है, अरम, परुल और काम। और फिर क्या हुआ होता है कि जैसे वो आपने बताया कि एक फादर लेजरस थे, उन्होंने पहले जब तमिल संस्कृति का विश्लेषण किया है तो उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट किया है। फादर लेजरस का आप पढ़ेंगे, उसमें गड़बड़ नहीं है। फिर एक आता है इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, G.U. पोप, जॉर्ज ऊगलो पोप। फिर ये इंटरप्रिटेशन को मिस इंटरप्रेट करना शुरू करता है, और तमिल रेस और ये सारी, और ये चीजें क्यों की गई, इसको आप षड्यंत्र को समझिए। जब अंग्रेजों को लगा कि इंडिया पे लंबे समय तक रूल करना है, तो 2 जगह उन्होंने अटैक किया कि इसको सिविलाइजेशन से एलाइनेट करना है। एक पंजाब, वो फाइटिंग नर्व सेंटर था, तो वहां से सिखों को ये बताओ कि तुम अलग थे और आइडेंटिटी को अलग लेके जाओ। और साउथ में तमिलनाडु मद्रास प्रेसिडेंसी का सेंटर था और वो इंटेलेक्चुअल नर्व सेंटर था, तो वहां पे सिसेशन के बीज बो। दुर्भाग्य ये है कि आज़ादी के बाद हमें उसमें से बाहर निकलना चाहिए था, हम बाहर निकलने की बजाय उसी में और चले गए। जैसे कि अभी आपने कहा आर्य बाहर से आए, आर्य बाहर से नहीं आए, हमें जानते क्या, आर्य से लेके आलू, गोभी, मिर्च, टमाटर सब बाहर से आया। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, आलू भी बाहर से आया बताया जाता है, गोभी भी बाहर से आई है, मिर्च भी बाहर से आया है, टमाटर भी बाहर से आया है। और कितनी मज़ेदार थ्योरी है, आर्कटिक से चले, फिर उसके बाद वो यूरोप में आए, फिर वो सेंट्रल एशिया में आए, फिर वो नॉर्दर्न इंडिया में आए और रुक गए। मतलब नॉर्थ से साउथ गए नहीं, ना बर्मा गए, ना थाईलैंड गए, ना वियतनाम गए। मतलब ऐसा लगा जैसे कि वो वहां से सिर्फ नॉर्थ साउथ का डिवाइड करने के लिए आ रहे थे। इसमें मैं कह रहा हूं, इसमें सिर्फ कॉमन सेंस यूज करने की जरूरत है, कोई बहुत वो यूज करने की जरूरत है। दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए आर्यों के बारे में, जहां पे लोग गए नेटिव्स को फिजिकली एलिमिनेट कर दिया। आज अमेरिका में नेटिव रेड इंडियंस कितने बचे हैं, ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनल कितने बचे हैं, यूरोप में जो ओरिजिनल ट्राइब्स थी कितनी बची। मगर यहां पे वो कह रहे हैं साहब सबको रखा, वाह। यहां पे ट्राइबल्स भी वो कह रहे हैं वो अलग थे, जबकि हमारे हिसाब से अलग नहीं थे, सबके वो जेनेटिक स्टडीज में सब कनेक्शन आ रहा है। फिर आप कहते हैं समाज का ये वर्ग बाहर से आया, ये वर्ग यहां पे था, यहां पे सबको रखा, बाहर सबको मार दिया। और मजे की बात, लैंग्वेज भी यहीं आके सीखी, इन स्थानों का वर्णन भी यहीं आके किया, और वहां से आके एग्जैक्ट डॉट कैंजेटिक प्लेन में रुक गए, आगे गए नहीं। अब मैं जैसे एक उदाहरण देता हूं, गर्मी के दिन चल रहे हैं, तो ये तरबूज होता ना, वाटरमेलन, तो कहते हैं ना ये बाबर अपने साथ लेके आया था। अब जरा आप अपना मोबाइल खोलिए तो देखिए तरबूज की, वाटरमेलन की शेल्फ लाइफ 10 से 12 दिन है, और उज्बेकिस्तान से घोड़े पे चल के कोई 12 दिन में हिंदुस्तान नहीं आ सकता, तो कैसे लेके आ गया। अब एक और बात समझिए, जबकि बाबर आया तो बहुत लंबे समय तक काबुल में रहा था। अच्छा, आपको लगता है कोई रूलर जा रहा होगा तो इतने बड़े बड़े तरबूज रख के जा रहा होगा अपने साथ। अच्छा, इवन इफ मैं मानूं कि वो कजाकिस्तान से आया, तो ट्रेडिंग तो हमारी हजारों साल से चल रही थी। जैसा मैडम ने कहा कि 10,000 साल पुरानी से, तो ट्रेडर क्यों नहीं ला सकता था भाई, व्यापारी नहीं ला सकता था, लुटेरे को ही लाना था।
ताकि लुटेरे के लिए रिस्पेक्ट पैदा हो सके। दो इट इज मोर लॉजिकल कि कोई ट्रेडर लाया होगा, अगर आया भी हो तो, क्योंकि ट्रेडर्स अपने साथ ऐसा खाना लेके चलते थे जो 10-10, 15-15 दिन तक काम आए, क्योंकि पता नहीं कितने दिन के बाद शहर मिले। ये जो लूटने वाली फौजें चलती थी, इनको इतना रसद लेके चलने, जहां पहुंचेंगे वहीं ले लेंगे, नहीं तो लूट लेंगे उस गांव और फसल को। तो दे डोंट वांट टू कैरी दोस थिंग, इट इज जस्ट अ सिंपल लॉजिक। इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं वो एक टीवी डिबेट में मैंने बोला था, रिमाइंड कर रहा हूं, जिस जमाने में एक घटना हो गई थी कि वो हमारे एक नेता थे मध्य प्रदेश के, कैलाश विजयवर्गीय जी, उन्होंने पोहा खाते हुए देखा तो उन्होंने कहा मैं समझ गया ये बांग्लादेशी हैं। तो एक नेता बोले कि साहब ये तो पोहा खाने से समझ गया, मैं तो पोहा खाता नहीं, मैं तो हलवा खाता हूं जो अरबी है। तो मैंने कहा था भाई हलवा अरबी कहाँ से हो गया? हलवे का प्राइम कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? शुगर। शुगर वहाँ होता है जहाँ शुगर केन होता है, शुगर केन इंडिया और क्यूबा में ही होता है सबसे ज़्यादा। दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है घी। घी वहाँ होगा जहाँ खूब सारा दूध होगा, दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी बनेगा। जहाँ ऊँटनी का बूंद बूंद दूध निकलता था, वहाँ कहाँ से दही, कहाँ से मक्खन, कहाँ से घी बना। और आपको पता है कि जो ऊँट का दूध होता है उसकी शेल्फ लाइफ हाफ एन आवर से कम होती है। यू हैव टू इमीडिएटली कंज्यूम इट। हाउ इलॉजिकल, इसके बावजूद हलवा उन्होंने बनाया, हमको खिलाया और हमने खा लिया और मान लिया कि हलवा इन्होंने दिया। जबकि मैं इसका ठीक उल्टा बताता हूं, कोई ऐसा देश तो हो जहां पर घी इतना होता हो। अगर हमारे यहां कहा गया कि दीपावली के समय घी के दिए जले, तो इसका मतलब हमारे यहां इतना घी होता था कि हर घर में घी के दिए जल सकते थे। वो पॉजिटिव पॉइंट जो हमारी प्राइड का हिस्सा होना चाहिए, नहीं वो पटाखे तुम जलाते हो उससे पोल्यूशन होता है, इस ढंग से निगेटिव भरा गया। एंड लास्ट में जो आपने बात कही, हमारे यहाँ दो चीजें, एक है शास्त्रोक्त और एक है लोकोक्त। शास्त्रोक्त क्या है? द बेसिक कोर, लाइक योर बॉडी एंड योर क्लोथ्स। क्लोथ्स कीप ऑन चेंजिंग, body remains same, and in the context of body your soul is constant, body keeps on changing in every birth. तो हमारे यहाँ कुछ चीजें शास्त्रोक्त हैं और कुछ चीजें लोकोक्त हैं। इन्होंने लोकोक्त को उससे कनेक्ट कर लिया, इनके ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं था। जैसे मैं कहता हूं शादी के समय अग्नि के 7 प्रदक्षिणा करके शादी की जाती है, ये शास्त्रोक्त है, उसमें जो मंत्र बोले जाते हैं। अब लोकोक्त क्या? अब इसके बाद आप जूता चुराने की परंपरा रखें कि छंद छुआने की, सुरसुराने की परंपरा रखें या कोई हंसी मजाक की परंपरा, वो जगह जगह के हिसाब से और हर व्यक्ति के हिसाब से बदलती रहती है। इसलिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको कि आप कहेंगे कि ये हिस्टोरिकल नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, आपने आल्हा का नाम सुना होगा, आल्हा उदल का। तो वो पृथ्वीराज चौहान के जमाने में लिखा गया, तो वो हुआ 12th सेंचुरी। उस जमाने में तो तोपें नहीं थी, मगर आल्हा में ये बात आती है कि बड़बड़ तोपे अष्ट धातु की, तुरते बत्ती दई लगाए और दगी सलामी दो दलनमा, धोना गवा सरग मंडराए। आप कहेंगे ये तो इनफैक्चुअल। अरे भाई वो फैक्ट के लिए नहीं है, वो लोकाचार के लिए है। जैसे आपको ये भी कहूं, अगर लोकाचार की बात कहें तो बाद में आल्हा को जो रिटर्न करवाया वो एक फर्रुखाबाद के कमिश्नर थे, यूपी में जो फर्रुखाबाद जिला है, उन्होंने उसको डॉक्यूमेंट कराया। तो उस आला में जो प्रिंट किया गया उसमें लास्ट में ये भी लिख दिया गया, यही आला सच्चा भैया जे इलियट साहब दीन लिखा है। तो अब कोई कहेगा इलियट साहब कैसे आ गए पृथ्वीराज चौहान के जमाने में? ये लोकाचार है, ये जूता चुराने वाली परंपरा है, ये हजारों साल पुरानी है, ये सच नहीं है। हाँ, वो मंत्र हजारों साल पुराने हैं और वो तो हमारी, मैंने इसलिए आपको कहा कि हमारे नॉलेज सिस्टम के जो क्लासिफिकेशंस हैं, जो बाइफर्केशंस है, उनको हम देख के समझते रहेंगे तो हम बेहतर ढंग से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मैम, योर व्यूज ऑन दिस? Basically, I would say that young people today should not have an inferiority complex. हमें अभी तक from independence सिखाया गया that we are a defeated civilization. ऐसे झूठ लिखा गया है इतिहास में that we have been defeated, which is not the truth. आपको मालूम पड़ना है कि from time immemorial we were a great मैरीटाइम पावर। आपको मालूम है हम शिप्स बिल्डिंग सब करते थे। आप थोड़ा चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छोड़ दीजिए, अब इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल हो गई, स्टुपिडिटी इज ओरिजिनल। सो आई वुड टेल इंडियंस, प्लीज डोंट एप। आप पढ़ो, लिखो और क्रिटिकल थिंकिंग करो। आप करेंगे मैडम क्यों बोल रहे हैं आप ऐसे? सी देखिए, 2-3 ग्रेट जीनियसेस है, 2 नोबेल प्राइज विनर्स फिजिक्स में, सब वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही ऊपर आए।
मॉडर्न मैथमेटिक्स से नहीं। श्रीनिवास रामानुजम, द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन, वो 12वीं फेल है, मालूम है आपको, इंग्लिश में नापास हो गई। बट उनका मदर मोटा, ये पत्रिका है ना, पत्रिका का कैलकुलेशंस करती थी, वैदिक मैथ एस्ट्रोलॉजी, और उन्होंने वहाँ से सीखा। जब प्रोफेसर हार्डी ने पूछा उनसे, वह एक क्लर्क था पोर्ट ट्रस्ट में, और ऐसे एल्गोरिदम्स लिखा कि आज आपका सब एल्गोरिदम राइटिंग सॉफ्टवेयर उनकी एल्गोरिदम से ही हो रहे हैं। प्रोफेसर हार्डी ने पूछा, आप अनपढ़ है, आपका पीएचडी भी नहीं है, आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं? उन्होंने कहा, गॉडेस भगवती कम्स एंड राइट्स इट ऑन माय टंग। आप इसे कैसे? और 2 नोबेल प्राइज विनर सीवी रामन एंड श्रीनिवास रामानुजम, आई मीन सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, दोनों वैदिक में। आजकल आप सबको इतना पीएचडी करके, कॉपी करके, चैट जीपीटी करके क्यों नोबेल प्राइज नहीं मिल रहा है? आप सोचिए ना, क्योंकि आप कॉपी कर रहे हैं। कॉपी मत करो। वी आर अ ग्रेट धार्मिक सिविलाइजेशन। धर्म सर, मैं धर्म निरपेक्षता जो ट्रांसलेशन होती है हिंदी में सेक्युलरिज्म को, मैं अपोज करती हूँ, क्योंकि वो पंथ निरपेक्षता है। धर्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ। वो किसी और, जैसे सुधांशु जी ने बताया, कोई और पंथ में नहीं है ये धर्म। और दूसरा, नॉन ट्रांसलेटेबल्स, आप जो शब्द अंग्रेजी में नहीं लिख सकते हैं, उसको आप संस्कृत शब्द ही या भारतीय भाषा की शब्द यूज़ कीजिए। द ब्रिटिश लोग ने जगन्नाथ से लिया, आप क्यों इतने शर्मिंदा होते हैं यूज़ करने के लिए? प्लीज़, बिकॉज आई वुड से आज वी हैव बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। क्या है, हम बताते थे नॉलेज इज पावर, अब पावर इज नॉलेज भी बता सकते हैं, तो वो भी हम बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग यंगर जनरेशन, आप ओरिजिनल थिंक करना चाहिए, और इसीलिए मैं आपसे कहूँगी कि किताब पढ़ो लिखो और थिंक करो। सिर्फ चैट जीपीटी से कॉपी मत करो, क्योंकि मशीन्स आर लर्निंग, ह्यूमन्स आर सर्फिंग, आप लर्न नहीं कर रहे हैं। सो ये थोड़ा छोड़िए। एक है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारी अगेंस्ट थे इंडियन नॉलेज सिस्टम को, उन्होंने बहुत वेरी इंटेलिजेंटली उन्होंने कैप्चर किया जहां आपका मन बदल सकते हैं। एक है एजुकेशन और दूसरा है सिनेमा। आप बॉलीवुड सिनेमा देखिए, कैसे झूठ बोलते हैं उसमें। उल्टा दक्षिण के सिनेमा देखिए, उनमें तो बहुत शिव जी हमारा, अभी भी हम बड़े बिंदी लगाते हैं, फूल लगाते हैं। और बाहुबली देखिए, उसमें शिव जी का आराधना से ही शुरू करते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबको कहती हूँ कि डोंट बी अशेम्ड ऑफ योर सिविलाइजेशन। वी आर अ ग्रेट सिविलाइजेशन स्टेट। और ये आप 10-10 बार बोलो, देन यू विल ऑल्सो स्टार्ट बिलीविंग इट। ये मेरा है। एक टेक्स्ट बुक्स चेंज कर रही है गवर्नमेंट, दो आई स्टिल विल क्रिटिसाइज सर। 10 साल के हुए हैं, वो लोग एक दिन में बदल लेते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ आप सब एकजुट होकर, ये बदलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज स्कूल से हमें सिखाना पड़ेगा कि ये सिविलाइजेशन एंड वॉट एवर थिंग्स पीपल आर सेइंग, जो जो आप में लिख सकते हैं लिखो। बिकॉज द मोर इंटरेस्टिंग यू मेक बुक्स। अब देखिए, यू हैव कॉमिक्स वेर यू हैव हनुमान, कृष्ण, ऑल ऑफ देम वेरी स्मार्ट, आई लाइक देम ऑल। सो ये भीम, ये सब, सो दिस इज समथिंग दैट हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस। सिर्फ टॉम एंड जेरी नहीं है, ये भी होना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड यूथ आप ही कर सकते हैं, सिर्फ हमें छोड़कर नहीं चलेगा। हर एक आप के लिए एक कर्तव्य है विकसित भारत में
कि हमारा होलिस्टिक है, हम किसी को सेपरेट नहीं करके देखते हैं, सब साथ में लेते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप देखिए आर्यभट्ट जी भी जब मैथमेटिक्स लिख रहे थे, पोएट्री और रिडल्स थ्रू लिखा है। दैट मीन्स ही न्यू लिटरेचर, ही न्यू फिलॉसफी एंड ही न्यू मैथमेटिक्स। ये वेस्टर्न जैसा एक ही करने में यूज़फुल नहीं, वो लोग भी अब हमारे तरफ आ रहे हैं, हम ही अभी तक मुड़ा नहीं, अब मुड़ने का टाइम आ गए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जैसे सर ने बताया आर्यन इन्वेजन की बात कर रहे थे, तो जो एक बहुत हम सभी को जो वैसे मैं एक बात आपके ऐड करना चाहूँगा, जो आपने बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों की बात कही, आप में से हम सब ने तो हिंदी फिल्में देखी होंगी, तो जंग हो वर्ड सुना होगा, यलगार हो भी सुना होगा। यलगार इज अरेबिक वर्ड, पर किसी ने ध्यान दिया इसका शुद्ध हिंदी का वर्ड क्या होता है संस्कृत का? बाहुबली मूवी देखी हो तो उसमें वो कहता है हतप प्रवीरा। हतप प्रवीरा, हत का मतलब मारना, वीर का मतलब वीर, और प्रवीर मतलब आगे बढ़ो। उधर से कहता हतप प्रवीरा। हम लोग क्या सुनते थे हिंदी फिल्मों में? यलगार हो, मुकाबला हो। दोनों ही फारसी के शब्द हैं। उसमें कहता है हतप प्रवीरा, वो कहता प्रतिघात। आप कभी गौर से सोचिए, वो कहता त्रिशूल व्यूह समारंभ, यानी अब त्रिशूल व्यूह में सेना आगे बढ़े। अब नॉट टू बी, मतलब कोई पॉलिटिकल मामला नहीं, हमारे नेता ऐसे हैं जो कहते हैं चक्र व्यूह जो है वो लोटस है, जबकि उन्हें पता ही नहीं है हमारे यहाँ 32-33 प्रकार के व्यूह हैं। चक्र व्यूह, पद्म व्यूह, मकर व्यूह, और इसी प्रकार के त्रिशूल व्यूह, पद्म व्यूह, बिल्कुल अलग अलग हैं हमारे यहाँ। मतलब सोचिए कि लड़ाई भी कितनी आर्टिस्टिक और कितनी एक्सप्लिसिट थी। मैं दावे से कहता हूं किसी की हैसियत नहीं है जिसके यहाँ लड़ने के इतने व्यू होते हो जितने हमारे यहाँ होते थे, और उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन किया जाता हो। तो समझिए फिल्मों ने हमें कैसा कैसा दिखाया, और जैसे हमारे फिल्मों ने दिमाग में भर दिया गया कि साहब वो जब तक पर्शियन उर्दू के वर्ड्स नहीं होंगे तब तक वो प्यार मोहब्बत वाली शायरी आती नहीं है। जबकि मैं कहता हूं अगर आप गौर से पढ़िए, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़िए कालिदास का, चतुर्थ सर्ग में शंकुंतला की विदाई का दृश्य पढ़िए। मैं किसी को अपमानित नहीं करना चाहता, उसके बाद ये शेरो शायरी आपको धूल धूसरित कर्ण नजर आने लगेगी। मालविका अग्निमित्रम पढ़िए, अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा पढ़िए। स्वप्न वासव दत्ता पढ़िए, वासव दत्ता और उदयन की प्रेम कथा। और जब गाने में भी एक वो होता था, मैंने सुना था एक बार, वो किशोर कुमार जी से उन्होंने कहा कि साहब वो अच्छा जो गाना है, मोहब्बत वाले गाने तो बन ही नहीं सकते हिंदी में। तब उन्होंने वो गाना बनाया था गोपाल दास नीरज जी ने, वो बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। इसमें कोई उर्दू का शब्द नहीं है। कितना मधुर, कितना मदिर तेरा मेरा प्यार, प्योर हिंदी के वर्ड हैं। और अभी भी अगर आपने बाजीराव मस्तानी में देखा हो तो वो गाना है ना, अलबेला सजन आयो रे, उसमें लाइन क्या है, वो मन आनंदित अंग सुगंधित, मेरो मन अति सुख पायो रे, अलबेला सजन आयो रे। साहब सब में है, मगर आपको ऐसा बैठाला गया, ऐसा बैठाला गया कि साहब वो जो है सिर्फ उसी में सब कुछ है। इसलिए जो आपने फिल्मों वाली बात कही, बहुत गहराई से इसको समझने की ज़रूरत है। और हमारे दिमाग में, जैसे मुगल आजम फिल्म देखी, उसमें बहुत सारी चीज़ें आर्टिस्टिकली बहुत अच्छी थी, मगर साहब सोचिए क्या दिखाया गया कि सम्राट अकबर कितना न्यायप्रिय था, जबकि कैरेक्टर ही नहीं पता कि अनारकली नाम का कोई कैरेक्टर हुआ था भी कि नहीं। और आप सोचिए कि वो अय्याशी वाली चीज को भी कितने सुंदर ढंग से पैकेज कर दिया गया। और उसके बाद जितने भी मुगल बादशाह थे, किसी की एक बीबी रही हो तो बताइए? आधा दर्जन से कम ऑफिशियल बीबियां नहीं थी, और किसी के हरम में 200 से 300 से कम औरतें नहीं थी। पर एक स्त्री के प्रति समर्पित निष्ठावान के प्रतीक बॉलीवुड ने क्या बताया? जोधा अकबर, सलीम अनारकली, शाहजहां, नूरजहां, शीरी फरहाद, लैला मजनू। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बच्चों से कि सब समझिए। और अब ये जो प्रधानमंत्री ने अमृत काल कहा है ना, तो पहले विष निकालिए, तब अमृत की अनुभूति होगी। और आई जस्ट वांट टू ऐड, तेलुगु इज, लोग बोलते हैं दक्षिण भाषा में संस्कृत नहीं है, झूठ है। तेलुगु इज संस्कृत, वू लू ई। मेरे पिताजी का नाम आंजनेयलू है, आंजनेयलू को लू बना, हम तेलुगु में लू लू वू। या मलयालम लीजिए, बहुत संस्कृत है, बोलते हैं अद्देहतिन पेरेंदा, मीन्स तुम्हारा नाम क्या है। देहम संस्कृत है,
मराठी भी ले लो आप हिंदी में बोलते हैं विदेश नीति। मैं जब पहली आई थी मैं विदेश नीति भूल गई, तो मैंने कहा भारतीय परराष्ट्र धोरणा। लोग बोले वाह मैडम क्या संस्कृत बोल रही है। और प्रधानमंत्री भी भूल जाती हूँ और बोलते पंत प्रधान। सो इसीलिए आप दक्षिण की भाषा में बहुत संस्कृत की शामिल है, और ये झूठ है जब लोग बोलते हैं संस्कृत नहीं है। वैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 साल पहले की बात है, मैंने हिंदी में शब्द यूज़ किया वितंडावाद। तो जो हमारे दिल्ली के इंग्लिश वाले वो थे जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड वितंडावाद, एंड इवन आई वाज नॉट नोइंग। हमारे जो तेलुगु के पत्रकार थे और जो तमिल थे, दोनों ने कहा वितंडावाद शब्द तेलुगु में भी है और तमिल में भी है और एग्जैक्टली उसी अर्थ में जिस अर्थ में हिंदी में प्रयोग होता है। अब आप बताइए, जैसे आपने मराठी की बात कही, आप लोग मुंबई गए होंगे तो जब एयरपोर्ट पे लैंड करने वाले हो तो क्या लिखा हुआ, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानतल, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब बताइए अड्डा ज्यादा अच्छी हिंदी है या विमानतल ज्यादा अच्छी हिंदी है? मगर हमारे दिमाग में कहा गया सिंपल हिंदी बोलो, मतलब विमानतल मत बोलो, अड्डा बोलो तो ठीक है। यहां पर अस्पताल वर्ड ये हॉस्पिटल का ट्रांसलेशन है। आप मराठी में जाके देखिए तो क्या लिखा रहता, रुग्णालय, लीलावती रुग्णालय, अणुशोधन केंद्र एंड रिसर्च सेंटर। इसलिए, और लास्ट में मैं कहता हूं जो लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना, साइंस जो आगे बढ़ रही है, भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता स्वयं स्थापित होती चली जा रही है। अभी आपने देखा काशी तमिल संगम हुआ था पिछले साल, प्रधानमंत्री जी ने 5 मिनट तक जो हिंदी में बोला वो एआई के द्वारा लाइव ट्रांसलेशन हुआ तमिल में। एआई आने के बाद इन नेक्स्ट 5-7 ईयर्स आप ये समझ लीजिए कि कम से कम जो टेक्स्ट का ट्रांसलेशन विल बिकम अ मैटर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। आप यूं बटन दबाएंगे और तमिल का अखबार हिंदी में पढ़ लेंगे। तो ये जो लैंग्वेज का बैरियर है, और क्वांटम कंप्यूटर आने के बाद ये संभावना हो सकती है कि रियल टाइम ट्रांसलेशन विद द रियल नोट्स भी होने लगे, तो ये जो लैंग्वेज पे लड़ाने का प्रयास है ये खत्म होने की पूरी संभावना है। और मैं आपसे कहूं जो साइंस डेवलप हुई तो हमारी श्रेष्ठता साबित हुई। हम लोग जब बच्चे थे, हमारी जनरेशन ने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है, संगम था ना, कि संगम इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा यमुना इन द मिथिकल सरस्वती। पर 1990 में नासा की पिक्चर में सरस्वती का ट्रैक दिख गया। अब तो जियोलॉजिकल डाटा ने यह भी बताया कि 5-4 साल पहले सरस्वती सूखी थी। अब बताइए, ये कहते हैं आर्य 1200 ईसा पूर्व आए, मगर जो 2000 साल पहले, यानी उनके आने से 3000 साल पहले जो नदी सूख गई थी उसका वर्णन कर रहे हैं। अपने आप उनकी थ्योरी खत्म हो गई। अब आप आइए, जो साइंस डेवलप हुई, पहले राम सेतु मानते नहीं थे, वो नासा की पिक्चर में दिखा। अब आइए, राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर खुदाई हो रही थी 76 में, तो जेएनयू के ही इतिहासकारों ने रुकवा दिया था, के मोहम्मद ने लिखा था। उस समय इन लोगों ने इंदिरा गांधी से कह के। अब आइए साहब, और इतना नहीं कराया, एक्सकेवेशन रुकवा दिया, कोर्ट से स्टे करवा दिया, खुदाई नहीं होगी। फिर क्या हुआ, ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार की टेक्निक आ गई, तो ऑपरेशन नहीं हो सकता, अल्ट्रासाउंड तो हो सकता है। तो दिख गया जीपीआर में, जब अटल जी की सरकार आई कि देखो भाई नीचे ये है, तो वो कोर्ट में दिया गया, उन्होंने खुदाई की परमिशन दे दी, सारे खंबे निकल आए। अब देखिए जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़, अब इतना डर गए हैं कि बाकी जगहों पे कहते हैं नहीं नहीं रडार मैपिंग भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, जो मैंने लाइटर नोट पे कहा, यहाँ तो मतलब मजाक में कहता हूँ, देखिए क्या है कि वो मैपिंग करवाने में बड़ा डर लगता है। जमीन की मैपिंग होगी या आपके जीनोम की मैपिंग होगी, तो जानते क्या निकल आएगा कि आखिर में अमर, अकबर, एंथोनी तीनों का बाप किशन लाल निकल आएगा। इस बात का डर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कहते हैं कि आर्यन आए और माइटी सरस्वती के किनारे बैठ के उन्होंने वेदों की रचना की। उनके आने तक सरस्वती उसका रूट लुप्त सी हो गई थी वो, क्योंकि सतलज का प्रवाह चेंज हो गया था। बहुत बड़ी कहानी है। तो बहुत सारे सबूत मिलते हैं जो बताते हैं कि हमारे ऊपर कितना झूठ थोपा गया और हमारी जो प्राचीन विजडम था उसको कितने गलत ढंग से पोर्ट्रेट किया। जैसे मंडन मिश्र की जो हम अभय भारती जो थी, वो जज बनी थी 2 विद्वानों के बीच के टॉक के लिए। तो सच अ ग्रेट थिंग। और इससे ये भी पता चलता है कि हम महिलाओं का जो स्थान के बारे में बात करते हैं वो बिल्कुल गलत था। मैं मैम शांतिश्री मैम से पूछना चाहूँगी कि जो अभी जो वेस्टर्न वर्ल्ड हम बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, बट हमारे प्राचीन शब्द
मतलब एंशियंट विजडम में हम महिला को शक्ति का स्वरूप मानते थे। तो मैम आपके विचार इस पे मैं जानना चाहूँगी, बिकॉज वी हैव मैत्रेयी, वी हैव ललिता, वी हैव लोपामुद्रा, वी हैव घोषा, वी हैव अभया भारती। सो आपके मैं जानना चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण हमें बात करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं तो बता दूंगी कि वी आर अ फेमिनिस्ट सिविलाइजेशन. मैम यू आर फ्री टू स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो। Okay, we are basically, I would say for us, gender is not in opposition of the male. For us, gender is balance. Ardhanarishwar. Meaning balance and harmony. We don't hate each other. We don't believe that the destruction of the other will get independence for women. We don't have this idea at all. We believe that the mother is the, what to say, origin. Please remember that also we are a very postmodern civilization. You'll ask how. The Western civilization became postmodern only now. See, all are pativratas. Who are the pancha pativratas? Women who broke the rules. Show me which other civilization gives such honor to women who broke the rules. So that means we are more postmodern, and we also had, what to say, LGBT. We respected them. It was a part of our civilization. We respected. You have in the Mahabharata, Shikandi. And we don't see Shikandi with any negative light. And please remember, who ran the Mahabharata? Draupadi. Because of her insult, she said she won't tie her hair unless she gets the blood of the thighs of Dushashan and Duryodhana. And it was Lord Krishna who did it for her with his brilliance. I would also say that, see, women's empowerment, the West need not tell us. Because it is they who brought down the downfall of women. This so-called organized religion around one church, one God, one book brought down the... because I would ask many of you, can you ask questions? Why there among the 13 disciples of, 12 disciples of Jesus Christ, there's no woman? Can you ask? You will be thrown out of that religion. Or the same with the other. But Bharat mein pooch sakte hain. You see the number of women we had. You had even Kannagi in the south, who's called as the first citizen activist. She burnt an entire Madurai. Or you have Kundavi, the Cholas. Or Rudramma Devi. We had women rulers. Do even all of you know about them? And please remember, we have people who defeated these invaders several times. Unke baare mein we don't know anything. I will tell you two ideas. I will call Saraswati the first postmodern woman who redefined marriage. Go read her story. Second, Sita is the first single mother. Big single mother aap bolte hai na? Saraswati started that my body is my property. Ye West log ne start nahi kiya. Sita is the first single mother. So मैं बोलती हूँ, the problem is हमारे लोग ignorance से we have been taught to hate our own civilization. Please remember, the minute somebody wants to destroy you, that is when they'll tell you your culture is inferior to mine. Because they can't compete with you. यही पहली physical invasion से हुआ North India में. That is why you don't have any temple like the temples of South India. And let me tell you, in JNU, why are we honoring the Marathas? Because of Chhatrapati Shivaji Maharaj, the last Hindu empire, South was saved. Please come and see our temples. Do you know it is scientifically built? All temples. And do you know, in Madurai, we have called Madurai Meenakshi. So the main sanctum sanctorum is with Meenakshi. Lord Shiva किसी corner पे है. पहली मीनाक्षी का आशीर्वाद लेना है, फिर ही शिव जी का मिलेगा. और तिरुपति भी जाइए, लोग क्या बोलते हैं, ऊपर जाकर वेंकटेश्वरा का दर्शन ले लो,
बट पद्मावती को जाकर बताना पड़ेगा, नाहीतर आशीर्वाद आधा. So we have this idea of balance, and that is important because I think men and women make the world colorful. अकेले women रहेंगे तो colorful नहीं रहेंगे ना, या अकेले men रहेंगे. And let me tell you, Indian men are any day better than Western men. वहाँ violence इतना होता है, Indian men are indifferent. हमें कोई फतवा नहीं दे सकते हैं. Parents, it is family. पिताजी को थोड़ा पट लिया या भाइयों को, you get your freedom. And see who is the one who supports the daughter. It is the father. And let me tell you, लोग बोलते हैं सिर्फ माँ sacrifice करती है. I don't believe it. मेरी माँ, मैं जब 15 दिन की थी, उनकी देहांत हो गई. मेरा पिताजी did not marry again. He was an IAS officer. He could have easily married. मेरे लिए उन्होंने sacrifice किया. And let me tell you, it is because of men I have become so bold. So, so I don't agree in this opposition. ये झूठ है, and I think our concept of balance and harmony is the real truth. हमें male भी है, female भी है. This is also scientifically proved that all of us have both the hormones. So इसीलिए मैं बोलती हूँ वेस्ट से कुछ सिखाने के लिए नहीं है. Only you young people read your texts. पढ़कर condemn करो. Without reading, don't condemn. Yes, सुधांशु जी. ये जो आपने बोला उसी में मैं आगे बताता हूँ. हम लोगों ने सबने पढ़ा, कभी ध्यान नहीं दिया. रामायण और महाभारत दोनों का अंत कहाँ पे होता है? महाभारत का अंत कहाँ पे है? युधिष्ठिर के राज्याभिषेक पे नहीं, महाभारत युद्ध के समाप्त होने पे नहीं, न यादवी वंश के नाश पे. भगवान कृष्ण ने जब अपना शरीर छोड़ा, भगवान कृष्ण को शरीर क्यों छोड़ना पड़ा? उनका अंत कैसे हुआ? जो बहेलिये ने छुप कर मारा उनको, ये हिरण समझ के, वो क्यों हुआ था? गांधारी का श्राप. इसका मतलब महाभारत का अंत क्या बताता है? आसुरी शक्तियों पे दैवी शक्तियों की विजय पे महाभारत नहीं समाप्त हो रहा है. ईश्वर के ईश्वरत्व पर स्त्री के सतीत्व की विजय ईश्वर के ऊपर भारी है. अब आइए सेकेंड, रामायण का अंत कहाँ पे है? जब लवकुश घोड़ा पकड़ लेते हैं और युद्ध करने को तैयार होते हैं, भगवान राम आते हैं, तो सीता जी कहती हैं कि ये तुम्हारे पिता हैं, इनसे युद्ध मत करो. अयोध्या की सारी जनता उनसे पश्चाताप करती है, पर वो वापस नहीं जाती हैं और धरती में समा जाती हैं. यानी फिर स्त्री के सतीत्व की विजय ईश्वर के ईश्वरत्व के ऊपर. फिर भी हमको क्या पढ़ाया जाता है? देखिए साहब, भगवान राम ने तो कितना गलत काम कर दिया था, वो सीता माता को वन भेज दिया था. तो ये बताओ, भगवान राम किसी वजह से बन गए थे? कई वजह से गए थे ना. ये पॉइंट छुपा दिया. उस जमाने में किसी वुमेन में इतनी पावर थी कि राजा को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ जाए, होने वाले किंग को जाना पड़ जाए. और उसको वो वरदान किस लिए मिला है? कि युद्ध में उसने दशरथ की मदद की थी, वुमेन युद्ध में जाती थी. ये सब छुपा दिया गया. अब जो आपने महाभारत का उल्लेख किया, साहब द्रौपदी को जुए में हार गए. अरे भाई, उससे पहले अपने 4 भाइयों को भी तो हारे. बताइए, हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे पे ज्यादा हक है या आपके ग्रोन अप भाई का? भाई को नहीं मुद्दा बनाना है, क्योंकि छोटा भाई कोई वर्ग नहीं है समाज में. अगर आप किसी के छोटे भाई या छोटी बहन है, तो किसी के बड़े भाई बड़ी बहन भी है अपने रिलेशन में. तो उसमें डिवीजन नहीं क्रिएट किया जा सकता. स्त्री पुरुष में डिवीजन क्रिएट किया जा सकता. और जो हमारे यहाँ शक्ति की बात कही गई, ये ऐसे नहीं, हमारे यहाँ मात्र शक्ति शब्द प्रयोग किया गया है. क्यों? हमारे माना गया व्हेन द यूनिवर्स इज क्रिएटेड, तो सबसे पहले इनिशिएशन क्या होगा? शक्ति, एनर्जी. इसीलिए हमारा जो नववर्ष शुरू होता है वो किस दिन से माना जाता है? जिस दिन संसार की उत्पत्ति हुई. तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? 9 दिन शक्ति की पूजा करते हैं. बिकॉज साइंस एक्सप्लिसिटली सेज दैट द यूनिवर्स विल कम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर द एनर्जी हैज फर्स्ट इनिशिएटेड. अब आप आइए, हमारी बॉडी के अंदर जब वूम में बच्चा होता है, तो हमारी जितनी भी ये सेल्स हैं, सेल्स के अंदर जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिर्फ मदर से मिलता है, फादर में नहीं होता माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. तो इसका मतलब जब हमारे सूक्ष्म में अगर जीवन का प्रारंभ हो रहा है, तो भी शक्ति से हो रहा है. और विराट में जब यूनिवर्स का प्रारंभ हो रहा है, वो भी शक्ति से हो रहा है. इसलिए मात्र शक्ति कही गई है. और इसीलिए हमारे यहां बराबरी नहीं कही गई है, हमारे यहां उनको पहले स्थान दिया गया है.
सीता राम, सीता पहले राम बाद में, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, राधे श्याम और माता पिता। बट इसका दूसरा पक्ष भी बताता हूं। वो कहते हैं साहब महिलाओं को वहां नहीं जाना चाहिए शमशान में। तो पहली बात होगा तो शमशान जाना बहुत अच्छी बात है क्या? अब मैं बताता हूं क्यों नहीं जाना चाहिए। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे वो एक अलग बात है। हमारा जो जीवन का एंड का प्रोसेस है दैट इज नॉट डिकम्पोजिशन। बाकियों में क्या है, यू वॉन्ट टू डिकम्पोज योर मटीरियल, इट विल टेक ईयर्स टू डिकम्पोज, इवन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू डिकम्पोज। ठीक, हमारा जो है दैट इज डिसोल्यूशन। इन देयर अदर प्रोसेस द मास कन्वर्ट्स इनटू मास, इन अवर प्रोसेस द मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इज कन्वर्ट्स इनटू वाइब्रेशन। इसीलिए आपने देखा होगा, अगर आप ध्यान दें, बच्चा जब पैदा होता है तो उसका ये वाला जो पोर्शन है इसकी बोन ग्रो नहीं की हुई होती, वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो कहते हैं ना गलती से भी यहाँ आता नहीं, ओवर ए पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स धीरे धीरे वो ग्रो करती है। इसीलिए जब अंत में आप कपाल क्रिया करते हैं तो इसी पॉइंट के ऊपर मारते हैं, क्योंकि ये मानते हैं यहीं से फाइनली वो निकलेगा। अब आपको बताता हूं, सिंस डिसोल्यूशन का प्रोसेस है तो टिल समबडी इज हैविंग द वाइब्रेशन ऑफ क्रिएशन, that person should avoid going to that place where from thousands of years every day hundreds of people have got dissolution, and so there the vibration of dissolution will be very strong. So it is definitely going to interfere with your vibration. अगर कोई का ऐसा नहीं है तो भाई फिर क्या कहते हो कि यार एक्सरे में जो है वो गर्भवती महिला को नहीं जाना चाहिए। अब कोई कहे नहीं मैं तो जाऊंगी, जब देख लूंगी मेरे बच्चे पे इफेक्ट पड़ा तब मैं मानूंगी। कोई तो ये नहीं कहता ना। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि हमारे यहां हर चीज का वाइब्रेशन, अब जब क्रिएशन के वाइब्रेशन की जरूरत होगी, गोद भराई में कोई पुरुष नहीं होना चाहिए, गोद भराई में वो सराउंडेड बाई लेडीज ही होना चाहिए। बिकॉज व्हेन देयर इज ए इनिशिएशन ऑफ लाइफ तो इट हैज टू बी सराउंडेड बाय द वाइब्रेशन ऑफ क्रिएशन। व्हेन देयर इज अ डिसोल्यूशन ऑफ लाइफ देयर हैज टू बी अवॉइडेड दोज हु आर हैविंग द वाइब्रेशन ऑफ क्रिएशन। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे यहां कोई चीज है इतनी इन डेप्थ में है, इतनी इन डेप्थ में है कि अक्सर आपको समझ ही में नहीं आएगा कि किस कारण से क्या चीज हो रही है। जैसे मैं पहले भी बात बोल चुका हूं, जो हमारी 9 दुर्गा है वो किस चीज का प्रतीक है? प्रथमम शैलपुत्री, यानी अभी वो बालिका है, ए नेशेंट एनर्जी। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, नाउ द एनर्जी विल इवॉल्व इनटू प्योर एंड चेस्ट एनर्जी। तृतीयम चंद्र घंटेतु, उनके 4 हाथ आ जाएंगे। फिर आएंगे पंचमम कुष्ठमांडा, चतुर्थम कुष्ठमांडा, कुष्ठमांडा मतलब प्रोजनी की बात हो रही है। पंचमम स्कंद माता, अब प्रोजनी शुरू हो गई। उसके बाद काल रात्रि आएंगी, यानी अब बिल्कुल जो नेगेटिव एनर्जी है उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। काल रात्रि के बाद एकदम से जो महागौरी आती हैं वो प्योर एंड सब्लाइम एनर्जी हो गई। और फिर द नवम सिद्धिदात्री, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। अब अगर मैं लास्ट में कहूं, लेफ्टिस्ट को सबसे ज्यादा किसको मानते हैं? मार्क्स और मैक्स वेबर को। दोनों में से कोई ना हिंदुस्तान आया, ना भारत का कोई ग्रंथ पढ़ा, ना भारत की कोई भाषा आती थी, फिर भी उनके लिए वो गॉस्पल ट्रुथ है। जो मार्क्स ने 1854 में शिकागो हेल्थ ट्रिब्यून में 2 आर्टिकल्स लिखे और उन्होंने लिखा कि जो हिंदू हैं ये भले ही कितने समृद्ध हों, पर जो बंदर, हनुमान, नंदी, बैल, हाथी, गणेश और गाय को पूजने वाले इसी लायक हैं क्योंकि वो मूर्ख हैं कि उन पर शासन किया जाए। अब बताइए, ये सब समझने लायक बुद्धि उनके थी क्या? मूर्ख हम नहीं थे, मूर्ख वो हैं जो इन चीज़ों में आकर पढ़ रहे हैं। इसलिए हमारे, अब एक और आप समझिए, सबरीमला मंदिर में नहीं जाना चाहिए, इसको लेके बड़ा मुद्दा था। तो आपको पता है 4 मंदिर ऐसे हैं केरल में जिनमें पुरुषों का प्रवेश निषेध है। कोटक्कल भगवती मंदिर, सिर्फ स्त्री जा सकती है। बहुत सारी चीजें हैं। और इसको भी ऐसे समझिए, अगर आप जाएं तो इसमें पढ़ेंगे तो जो सबरीमला मंदिर में जाने का वो है प्रोसेस, वो सीधे नहीं जाते। वो 7 मंदिरों की श्रृंखला का अंतिम मंदिर है, जिसका पहला मंदिर है अच्चिन कोविल मंदिर तमिलनाडु में। यह 7 चक्र का प्रतीक है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, अनाहत, आज्ञा और विशुद्ध चक्र। तो विशुद्ध चक्र जो है यह मोक्ष का प्रतीक है। इसीलिए सबरीमला पे लिखा तत्वमसि, यानी अब आप मुक्ति की तरफ जा रहे हैं। तो टिल समबडी इज हैविंग द वाइब्रेशन ऑफ क्रिएशन, डोंट गो फॉर फाइनल इमेंसिपेशन। फाइनल मुक्ति वाले वाइब्रेशन पे मत जाइए। अब प्रॉब्लम जानते क्या है? हमारे यहां जो आपने कहा, जब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत पहुंचा तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका नाम क्या रखा? पॉइंट शिव शक्ति।
हमारे यहाँ शिव और शक्ति दोनों को माना गया है। प्रॉब्लम क्या है कि वेस्ट में जितने भी धर्म हैं, रिलीजन, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, मैं किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहता, उनके लिए ईश्वर के कॉन्सेप्ट में सिर्फ और सिर्फ पुरुष है, स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं है। हमारे यहां शिव और शक्ति दोनों हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, जो रिलेशन जो अभी मैडम ने बताया, कालिदास ने रघुवंश में लिखा है कि भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर स्वरूप में माता पार्वती और भगवान शंकर का पुरुष स्वरूप दोनों मिलकर कैसे संसार की रचना करते हैं। वागार्थमि संप्रक्तो वागार्थमि प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। यानी जैसे शब्द और अर्थ दोनों मिलकर कविता की रचना करते हैं। अकेले शब्द का कोई रिलेवेंस नहीं अगर अर्थ नहीं है, और अर्थ का कोई एक्सप्रेशन नहीं अगर शब्द नहीं है, दोनों मिलकर रचना करते हैं। तो इसीलिए कभी कभी पुरुष शब्द है और अर्थ अनुभूति है, स्त्री अनुभूति है, इसलिए अनुभूति की क्षमता स्त्री के अंदर अधिक है। और जो आप कहेंगे साहब ये प्योरिटी और चेस्टिटी और ये वाली चीजें समझने, भाई तेरे को समझ में नहीं आता कि आप जो समझिए यूरेनियम 238 होता है, जिससे यूरेनियम 235 बनता है, इससे न्यूक्लियर रिएक्टर बनता है। अगर आप उसकी रॉड बनाएं और स्टेनलेस स्टील की रॉड के साथ लड़ाई लड़ें तो स्टेनलेस स्टील की रॉड भारी पड़ेगी, यानी फिजिकल स्ट्रेंथ में स्टेनलेस स्टील की रॉड ज्यादा है। बट इफ यूरेनियम 238 गेट्स इट प्यूरिफाइड, इट बिकम्स यूरेनियम 235 एंड इट स्टार्ट्स द न्यूक्लियर रिएक्शन, 1,00,000 रॉडों को यूं भस्म कर देगी। इसलिए जो स्त्री के अंदर की क्षमता है वो तो वेस्ट की नॉलेज के बाहर है। मतलब हम लोग मजाक में कहें, हम लोग जब लखनऊ में रहते थे, कई बार वो पान की दुकान पे लोग खड़े होते तो कोई बहुत भारी बात कह दे तो ऐसे मजाक में, भैया ये है इंग्लिश तुम्हारी नॉलेज के बाहर है। तो मैं वही कह रहा हूं, उसी प्रकार ये उन लोगों के नॉलेज के बाहर की चीज है। इसीलिए आप एक और बात समझिए, हमारे यहां जो तंत्र सूत्र है, जो शिव ने पार्वती को बताया है, तंत्र सूत्र क्यों शिव पार्वती को बता रहे हैं? तंत्र, आप अपने अंदर की जो कॉन्शियस एनर्जी, उसका एलिवेशन तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर स्त्रैण ग्राह्यता हो। क्योंकि इट्स नॉट यू आर गेटिंग सम, इम्पार्टिंग सम नॉलेज। देखिए इंटेलिजेंस हमारे यहाँ कभी नहीं पूजी गई, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता रही कि इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल हो सकती है। तो ये बात मान लीजिए, हमारे यहाँ मन की बात कही गई, तन्मय मनः शिव संकल्प वस्तु, संकल्प को महत्व दिया। संकल्प आर्टिफिशियल नहीं हो सकता, इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल हो सकती है। और मैं आपसे लास्ट में भी कहता हूं, हम जिस मुकाम पे साइंस हमको पहुंचा रही है, अभी तक जहां पहुंचाया है, आज से केवल 50-60 साल पहले कोई कहता था ये भारतीय संस्कृति, हिंदू लोग कैसी बेवकूफ़ी की बातें करते हैं कि अगर नॉलेज अटेन करना तो कहते जाके ध्यान लगाओ गुफा में। अरे ऐसे कोई नॉलेज अटेन होती है? If you want to attain knowledge, you should go outreach, study the places, meet the people, then you will be able to comprehend what the fact is. आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस IT के एरा के आने के बाद अगर आपको कोई अखबार पढ़ना है, लंदन का संडे गार्डियन पढ़ना है, तो 2 तरीके हैं, यहाँ से फ्लाइट पकड़िए 10 घंटे की, या न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ना है तो 20 से 22 घंटे के, 16 से 22 घंटे आपकी फ्लाइट लगेगी। आज का अखबार कल पढ़िए। और दूसरा है अपने मोबाइल के ऊपर डाउनलोड करिए और खट से पढ़ लीजिए, क्योंकि जिसने डिवाइस बनाया है उसी ने सपोर्टिंग नेटवर्क बनाया है, और उसी ने सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर बनाया, उसी ने कनेक्टिंग नेटवर्क बनाया है। तो हमारा शरीर एक डिवाइस है, मन बुद्धि चित्त अहंकार सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है, और सारा नॉलेज कनेक्टिंग नेटवर्क में है। बस आपको कनेक्ट करना है और वो खट से डाउनलोड होना है। और अब हम नॉलेज के उस मुकाम पर पहुंच रहे हैं। एआई बहुत छोटी चीज है, जो क्वांटम कंप्यूटर आ रहा है वो जानते क्या है? क्वांटम और एआई में फंडामेंटल डिफरेंस जानते क्या है? आज की टेक्नोलॉजी डिजिटल लेवल पे है। डिजिटल इज ऑन द डिटर्मिनिस्टिक प्लेटफॉर्म एंड क्वांटम इज ऑन द प्रोबेबिलिस्टिक प्लेटफॉर्म। प्रोबेबिलिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक में क्या है? ये बाइनरी पे चलता है, डिजिटल 1010। अब मैंने कहा कि मुझे ये मीठा लगा, तो डिजिटल डिटर्मिनिस्टिक प्लेटफॉर्म ये कहेगा 1 मींस मीठा, 0 मींस मीठा नहीं। बट प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल क्या कहेगा? जैसे ही मैंने कहा कि मीठा, तो आप जितने लोग बैठे हैं, आप सबके मन में n नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्रिएट। अच्छा, ये आम जैसा मीठा, कि अमरूद जैसा मीठा, कि लीची जैसा मीठा, कि मलाई जैसा मीठा, कि रबड़ी जैसा मीठा, कि खोए जैसा मीठा, और n नंबर रसगुल्ले जैसा मीठा। आपको n नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्रिएट हो गई। ठीक, अब अगर आप देखें तो उनके परमुटेशन कॉम्बिनेशन से इसी कमरे में मिलियंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज हो गई। इसीलिए आप ये समझिए कि जो विलो चिप आई गूगल की, उसने क्या कहा कि 10⁻24 ईयर्स लगेंगे जिसको कैलकुलेट करने में। एक नॉर्मल कंप्यूटर को वो 5 मिनट्स में कर देगा। कैसे? वो साइमल्टेनियस कैलकुलेशन कर रहा है। अब आप आइए, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में कहा जाता है कि वो एंड पे तब पहुंचता है जब वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाए।
अब अगर हम कुछ ना बोलें तो आप सबके मन में जो मीठा आपको जिंदगी में सबसे अच्छा लगा होगा, आप कहेंगे शायद ये वैसा मीठा होगा। हियर द वे फंक्शन कोलैप्स। अब यहां पे जो मैं कहना चाहता हूं, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल हम सबके लिए बराबर है, मीठा है या नहीं है, बट प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में आप सबको मीठे की अनुभूति अलग है, मेरे से अलग है। क्वांटम कंप्यूटर अनुभूति की तरफ ले जा रहा है। अब हम कॉन्शियस के एरा के इंटरफेस पे आके खड़े हो गए, और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूं कि कोई सबसे पहले सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल कंपनी का आईबीएम का बना था 1972 में, उसको जिस साइंटिस्ट ने बनाया था वो इटालियन ओरिजिन का अमेरिकन साइंटिस्ट था। हिज नेम वाज फेडरिको फैगिन। आप जाके चेक कर सकते हैं, स्टिल ही इज अलाइव, ही इज 83 इयर्स ओल्ड। और उसने ये कहा है कि अब क्वांटम कंप्यूटर जिस अनुभूति की तरफ ले जा रहा है, ये कॉन्शियस की शुरुआत हो रही है। यानी अब एक और बात समझिए, जो आप लोगों ने वो देखा होगा, जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन उससे इफेक्ट हो जाती है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं या नहीं। अब ये तो साइंस है ना, तो साहब ऑब्जर्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो रही है और बदल जा रही है, ये तो साइंस है। और हम कहें जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, ये तो बैकवर्डनेस है। अब लास्ट में मैं कहूंगा, ये लाइट है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, लाइट आती है स्पेस में सूर्य से यहां तक, देन लाइट इज अ वेव। Otherwise, if you consider light as a particle, it cannot travel at the velocity of light in space. But जैसे ये पानी के अंदर आती है, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने देखा होगा, जो आजकल आप वो हाथ लगाते हैं ना, पानी आ जाता है, तो वो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक जैसे ही इफेक्ट उसका रुकता है तो करंट क्रिएट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाता है। दैट शोज द पार्टिकल नेचर। तो आज तक ये डिबेट है कि लाइट पार्टिकल है कि वेव है, तो कहा जाता है स्पेस में वो वेव है और मीडियम में पार्टिकल है। तो साहब ये तो है साइंस। और हम कहें आत्मा आकाश में अव्यक्त है और शरीर में व्यक्त है, तो ये है बैकवर्ड फिलॉसफी। ऐसा नहीं है साहब, अभी आपको समझ में आएगा, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द इंडियन नॉलेज सिस्टम। और फिर किसी को बुरा लगे, मैं ये नहीं कहना चाहता, पर इंडियन नॉलेज सिस्टम को समझने के लिए ऑर्थर शोपेनहावर, जिसने उपनिषदों का अनुवाद किया, उसने कहा इट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम। और फिर मैं लास्ट में कहता हूं, इरविन शॉडिंगर ने अपनी किताब माई व्यू ऑफ लाइफ, उसमें एक उसने पूरा चैप्टर वेदांतिक वर्जन लिखा है। नील्स बोर के बारे में कोटेड है, उसने कहा व्हेन आई वांट टू लुक टुवर्ड्स द नॉलेज आई लुक एट द वेदास। फिट्जे कैप्रा ने अपनी किताब में वर्नर हाइजेनबर्ग को कोट करते हुए कहा है कि 1929 में वो आए। ये किताब का नाम है अनकॉमन विजडम, आप वो चैप्टर जाके देख लें, पेज नंबर 40 से 45 के आसपास। उसमें वो कहता है कि आई वेंट टू वर्नर हाइजेनबर्ग इन 1972 एंड ही टोल्ड दैट ही विजिटेड इंडिया इन 1929 एंड हैड अ elongated discussion with Rabindranath Tagore on the various nuances of Vedantic philosophy, and from there the concept of interconnectedness, uncertainty and impertinence which was looking crazy, I got a comprehension. अब मैं यहां पे जो लास्ट में कहना चाहता हूं, मैं चैलेंज करके कहता हूं, दुनिया में कोई ऐसा धर्म ग्रंथ बताइए जिसमें साइंटिस्टों ने साइंस की थ्योरी देखी हो। नंबर 2, वो साइंटिस्ट उस धर्म को मानने वाला ना हो। अपने अपने धर्म के लिए तो बायस निकाल सकता है आदमी, वो उस धर्म को मानने वाला ना हो। और नंबर 3, जब उसने थ्योरी मान ली हो तो उसे ये ना कहा गया वो कन्वर्ट हो जाओ। बस ये फंडामेंटल डिफरेंस है। इसीलिए मैं लास्ट में कहूंगा, 66 करोड़ लोग कुंभ में आए, 50 लाख लोग फॉरेन से आए। स्टीव जॉब्स एप्पल के फाउंडर की वाइफ लॉरेन पॉवेल आई और अपना नाम कमला देवी रख लिया। उसके बाद वो लोग क्यों आते हैं यहां देखने? वो देखते हैं साधु सन्यासियों को देख के, जो नागा साधुओं को देख के वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसे लालू प्रसाद यादव जी की भाषा में कन्फ्यूजिया जाते हैं कि यार इनको चाहिए क्या जिंदगी में। क्योंकि मार्क्स तो कहता पैसे से सब कुछ सुख है, फिर सिगमंड फ्राइड कहता नहीं फिजिकल प्लेजर में सुख है, तो कोई दूसरा कहता नेम एंड फेम में। अरे भैया, इनको तो ना पैसा चाहिए, ना फिजिकल प्लेजर चाहिए, ना नेम एंड फेम चाहिए। इवन आपने कभी देखा होगा, आप किसी नागा सन्यासी के पास जाएं और आपका काम हो गया हो, आप थैंक्स देने जाएं तो वो डांट देता, कभी कभी गाली बक देता। आप कहते हैं भाई ये कैसा बिहेवियर है? वो इसलिए कि वो नेम एंड फेम में भी नहीं पढ़ना चाहते। अगर वो आपकी ग्रीटिंग्स एक्सेप्ट कर लेंगे, आप 10 लोगों को जाके बताएंगे, 10 लोग और आने लगेंगे। वो कंचन, कामनी और कीर्ति तीनों के मुंह से दूर रहना चाहते हैं। तो मैं लास्ट में कहूंगा, वो आकर किस लिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो तो सोचते हैं पैसे में, फिजिकल प्लेजर में, नेम एंड फेम में सब कुछ है, और फिर वो सुख को खोजते हैं कहाँ? कि वो सुख खोजें भौतिकता में, मदिरा में, मांस की बोटी में।
वो सुख खोजें भौतिकता में, मदिरा में मांस की बोटी में, ये भस्म रमाए अपने तन पर खुश हैं सिर्फ लंगोटी में। यहाँ मार्क्स भी फेल, मैक्स वेबर भी फेल, सिगमंड फ्राइड भी फेल। I only want to end up with this, saying that Indian knowledge system में, as he rightly said, female gods को पत्नी नहीं बोलते हैं किसी का, उमापति, सीतापति, लक्ष्मीपति। और आप देखिए, as he said, the western gods are binaries, so digital computing पे ही है, हम quantum computing पे हैं। हर एक को आपका भगवान को आप कल्पना कर सकते हैं, the way you want, in whatever रूप you want, और without even any रूप। and हमारा छठ दर्शन में only Vedanta talks about God, all other darshan talk about nature. So this is wrong to say that, you know, we are having a particular system. So please read all this and then be critical or admire. Thank you. Thank you so much, मैम शांति श्री जी एंड सुधांशु त्रिवेदी जी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ऐसे सेशंस 1-2 घंटे के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, बल्कि इससे और जिज्ञासा बढ़ जाती है। पर दोनों ही को बाहर जाना है तो हमें इस यहाँ सेशन को ख़त्म करना है। तो मैं आकाश जी से रिक्वेस्ट करूँगी। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच। I am sure बहुत सारे questions होंगे। I would request जो भी सवाल पूछ रहे हैं, first introduce yourself and keep the question very brief. The person there who raised his hand first. Good afternoon, sir. My name is Akhand Goswami. Sir, I had this question for you only. So, where do you see the trajectory of political Hinduism? That's As far as political Hinduism is concerned, the problem is कि Hinduism is not political at the core. Hinduism is spiritual, but the spiritual Hinduism has been branded by other ideologies as political Hinduism just to subdue its real true strength. I give you one example. हमसे कहा गया ना, आप इतने अच्छे थे तो 1000 साल गुलाम क्यों रहे और 2000 साल तक आप पे अटैक होता रहा। ठीक है साहब, हमने मान लिया हम गुलाम रहे तो जो कि 1000 साल में सोसाइटी में डिस्टॉर्शंस आए उसके लिए हम जिम्मेदार कैसे? नहीं, जिम्मेदार तुम ही थे साहब। हम जिम्मेदार थे तो हम डिसीजन ले रहे थे। नहीं, डिसीजन तो तुम नहीं ले रहे थे साहब। डिसीजन नहीं ले रहे तो हम कैसे रिस्पॉन्सिबल? नहीं, तुम गुलाम भी थे और डिसीजन भी तुम ही ले रहे थे। मीन्स वी वर हैविंग द स्लेवरी विद सोवरेनिटी, खुद मुख्तार गुलाम थे। इसलिए ये दिमाग में भरा जाता है। मतलब जिसे मैं कहूं कि 4 प्रेमाइज हैं जो आपको हिंदू धर्म के बारे में कहा जाता है हिंदुत्व को लेट डाउन करने के लिए। नंबर 1, सब बाहर से आए। नंबर 2, जो अच्छा था वो बाहर से आया, जो बुरा था वो तुम्हारा था। अगर बाहर आने वाले ने कुछ गलत कर दिया है जो प्रूव हो गया है तो तुमने बुलाया था। इन 4 प्रेमाइज के ऊपर सारी की सारी हिस्ट्री टिकी हुई है। और लास्ट में मैं कहूंगा, जो लोग कहते हैं हिंदुत्व बहुत लेटेस्ट फिनोमिना है, वीर सावरकर उनसे जोड़ते हैं, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो अपना साम्राज्य हिंदवी स्वराज्य बनाया था, और उनके लिए उनके राज कवि भूषण ने लिखा है कि राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राख्यो, स्मृति पुराण राखो वेद धुन सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाल राख्यो दूनी में। तो उन्होंने हिंदू और हिंदुवानी शब्द जो बोला है यही हिंदुत्व है और कुछ भी नहीं है। अब अगर कोई ये कहे कि मुझे हिंदू समझ में आता हिंदुत्व समझ में नहीं आता, तो उसके हिसाब से मनुष्य अलग है, मनुष्यत्व अलग है, और पुरुष अलग है, पुरुषत्व अलग है, तो बात अलग है। और लास्ट में मैं कहूँगा, सब्जुगेशन किस लेवल पे था। हमारी रेट ऑफ ग्रोथ 2% रहती थी। शायद 1968 में एक नोबेल लॉरेट हैं जिन्होंने वो एशियन डायलेमा कुछ ऐसे करके एक किताब, हाँ, उन्होंने कहा कि इंडिया कभी ग्रो कर ही नहीं सकता 2% से ऊपर, 1.8 और 2%। इट इज अ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो जिन लोगों को सिर्फ हिंदू समझ में आता था, हिंदुत्व नहीं समझ में आता था, रेट ऑफ ग्रोथ 2% होती थी। रेट ऑफ इन्फ्लेशन 10%, 12%, 16%, 17%, 27% तक रही है। और जब से हिंदुत्व समझ में आने वाले लोग हो गए हैं, अब रेट ऑफ ग्रोथ 7.5%, 8%। इस समय इंडिया हाईएस्ट ग्रोथ रेट वाला कंट्री अमंग ऑल द G20 एंड G7 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और रेट ऑफ इन्फ्लेशन नीचे रहती है। तो जब तक
हिंदू समझ में आने वाले थे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे था 1991। जब हिंदुत्व की गठबंधन वाली सरकार आई तो 2004 में 100 बिलियन पहुंचा। फिर हिंदुत्व की एब्सोल्यूट वाली सरकार आई तो 2019 में 500 बिलियन पहुंचा, आज 700 बिलियन है। तो जो लोग कहते हैं ना इसका डेवलपमेंट से क्या लेना देना है, तो डेवलपमेंट में मैं चैलेंज करके कहता हूं, पॉलिटिकल बेंच नहीं है, जब तक हिंदू समझने वालों की सरकार थी हमेशा रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऊपर और रेट ऑफ ग्रोथ नीचे, और काफी नीचे। और जब से इंक्लूडिंग अटल जी गवर्नमेंट जब आई है तब से रेट ऑफ ग्रोथ ऊपर और रेट ऑफ इन्फ्लेशन नीचे। See, I think basically you are implementing political Islam. See, when you politics is only possible where there's only one God and one book. Tell me which, even if you call LTT a Hindu group, did they say we killed for Lord Shiva, we killed for Parvati? Whenever you have the jihadi terrorism, they say they are doing it in the name of religion. This is not, other religions have never used terror. So this idea of political Hinduism itself is wrong. Because there is no one, we are we celebrate diversity. There is no, we are united, but we are not uniform. So that difference you have to make, so get your, what to say, things in order. मैं अटल जी की कविता के 2 पार्ट सुना के आपको इसका मीनिंग निकल जाएगा। पहली बात जो हमें कहा गया, हम तो साहब इतने शांतिप्रिय थे कि एक झापड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दो। आज के ज़माने में इतना बड़ा मुक्का पड़ेगा कि बत्तीसी बाहर आ जाएगी। तो हमने वो भी किया, तो मगर हिंदुत्व का वास्तविक स्वरूप क्या था? अटल जी की जन्म शताब्दी है तो अटल जी ने बहुत प्रसिद्ध कविता लिखी थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसका जो प्रथम छंद है वो हिंदुत्व की शक्ति को बताता है, जो ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखी कि मैं शंकर का व क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, मैं डमरू की प्रलयंकर ध्वनि नचता जिसमें भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे विप्लव लेकर जलथल अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मगर इतनी शक्ति के बाद जब हम वर्ल्ड की पावर बनना चाहते हैं तो किस लिए कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। We have a question from gentleman in the end. Okay, hello, Professor Pandit. So, I'm an assistant professor at IIIT Delhi. My name is Bapi Chatterjee. So, I will be referring to your article that appeared in Sunday Guardian last month, right? And you mentioned I would request you to keep the questions on the topic of the day. Yeah, okay. Yeah. So, well, I mean, it is related to Indian knowledge system. Keep it brief. Yeah, sure. So I mean, just referring to that, I mean, because you have talked at length about the sort of the rotten system, right, in hiring in SSS departments and so forth. So how do you see? I mean, what's the solution of that problem? I mean, if you could. I think you're talking about the article that I wrote on the woke jihadi Yes, in a way. narratives being built in the triple ITs, especially in the IITs and ICERs, where the social sciences and humanities departments. This was based on factual research of theses that came out from several IITs. Like you have what is called the jinn in fishing. And artificial intelligence is not artificial intelligence, it's Ayatullah's intellect. See, you can't do all this. And this is done under the cover of, influencing students. Like fishing in Kerala. I believe the Islamic principles of fishing. Then why not the Hindu principles of fishing? Then you will call it communal. I am surprised that IITs are doing this. And that is why I thought this was a type of poison that is coming. And you would have seen the person who condemned me the most was the Junuta. I asked the JNU fellows, I didn't even take your name.
I didn't even mention public universities. I only mentioned private and IITs, ISIS. So you know where the origin is. It is all their babies. So I was seeing how they have infiltrated into these IITs, not through merit, and this is true, this is on data. And I think people should get up. Because if you're bringing in such, unscientific theories as part of this thing, that is why I thought this has to be demolished. Sir, this is a very interesting session. Time is 5 p.m. I was told to wind up at 4:45 by the panelists. But with your permission, the last one. I think we should, all of us would be, we love to hear about our export system in ancient India. Yeah. So, हाँ, सो मुझे लगता है कि सुधांशु सर से हमें एक बार पूछना चाहिए कि जो एक्सपोर्ट्स था हमारा एंशंट टाइम में, वो बहुत ही रोबस्ट था. हमने मेटलर्जी का जो एक्सपोर्ट किया था, या हमने आयुर्वेदिक मेडिसिन का किया था, या कॉटन का था, मसाले का था. तो मसाले और ये सब के बारे में हम सब जानते हैं, स्पाइसेस के बारे में जानते हैं. पर जो दमस्कस ब्लेड होती थी, और वो जो ब्लेड बनती थी वो टिपिकल एक स्टील से बनती थी. वो स्टील आज तक के साइंटिस्ट कहीं बना नहीं पाए, सिर्फ इंडिया में बनती थी. और वो उसका एरिया एकदम वही है जो आज का सेलम एरिया है. तो वो एक बहुत ही यूनिक हमारा फीचर था. और बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आई हैं कि जहाँ पे ज्ञान का तो हमने किया ही, आपको सबको पता है योगा और आयुर्वेद है. बट इसके अलावा हमने हम्प बुल्ड भी हमारे गए हैं, इराक के तरफ गए हैं, और काफ़ी ग्रीस के तरफ गए. लंगूरों का भी हमने मतलब माइग्रेशन कहेंगे या उनको अपने साथ ले गए थे, जो भी कहेंगे. तो इस पर थोड़ा सा एक प्रकाश डालें सुधांशु जी. एक बस सिंपल आप बात समझिए, दिल्ली में कुतुब मीनार के पास हमारा मेहरौली का लौह स्तंभ है जो मेटलर्जिकल सुप्रीमेसी का प्रतीक है. उसे सिंबल बनाना चाहिए था ना दिल्ली का. एंटायर वर्ल्ड एक्सेप्ट दैट इट इज 2300 इयर्स ओल्ड मिनिमम. कितना है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट उसका सिंबल ठीक उसके बगल वाली कुतुब मीनार को बनाया गया. जबकि एनसीईआरटी में बाकायदा एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने आरटीआई लगाई कि व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स की कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई. दे रिप्लाइड इवन ड्यूरिंग द 2014-15 इटसेल्फ कि वी आर हैविंग नो प्राइमरी सोर्स, दिस इज जस्ट बाय ट्रेडिशन कि उसने बनाई. जो अपने यहाँ एक बांस की मीनार नहीं बना पाए, उन्होंने आके यहाँ पे कुतुब मीनार बना दी. मगर बगल में मेहरौली का लौह स्तंभ, और कर्नाटक के कुल्लूर में ऐसा ही बना हुआ है. जो ये कहा जाता है कि जब आदि शंकराचार्य आए थे तो ट्राइबल्स ने बनाया था. वो नॉलेज सिस्टम था हमारा. और मैं इसको एक जस्ट आपको कॉमन सेंस की बात कहता हूँ. भारत पे निवेदन 4th सेंचुरी BC में शुरू हुआ जब अलेक्जेंडर आया लूटने के लिए, और अंग्रेज आए 17th सेंचुरी में. 1800 के आसपास हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ बैडली. मुगल काल में भी हुआ पर इकोनॉमिक डाउन. ये 2200 साल हमको लूटने में क्यों लगे? कितना सोना था हमारे पास जो 2200 साल लूटने में? ऐसा नहीं था. जानते क्यों हुआ? जब वो लोग लूट के ले जाते थे तो हमारे यहाँ का व्यापारी हंसता था. हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर चीज़ इतनी सुपीरियर थी. उसने कहा सोना लूट के ले जा रहे हैं, इनको सोना से क्या खरीदेंगे, हमारे ही पास आएंगे. नंबर 1, रंगीन कपड़े बनाना सिर्फ हमें ही पता था, पक्का रंग कपड़ों पे लगाना. इसीलिए मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट वहाँ सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कपड़े होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं. अब हमारा भगवा रंग है, जिसका मतलब भगवा करना आता था ना, तभी तो भगवा रंग आएगा ना. अब आप आइए नेक्स्ट. आप कहेंगे खाने की चीज़ें, तो मसाले हमारे यहाँ होते थे. 3rd, दवाएं तो मेडिसिन हमारे यहाँ होती थी. फिर उसके बाद जितनी बड़ी बड़ी मेटल्स थी, जैसा कि अभी आपने उसका उल्लेख किया कि जो स्टील बनती थी, जिनसे ये सोर्ड्स बनती थी, ये भी हमारे यहाँ होती थी. तो जिन चीज़ों की आप अपेक्षा करेंगे, यानी आखिर में आप लूट के ले जाएंगे और फिर वो सोना हमको फिर दे जाएंगे. क्योंकि आपको जो चाहिए वो तो सिर्फ यहीं से मिलने वाला है. और एक और बात आपको शायद ना पता हो कि बहुत समय तक वेस्ट को कपड़े में कॉटन का पता नहीं था. वो सिर्फ चमड़ा और ऊन 2 चीजें जानते थे. जब वो पहली बार कॉटन आया तो ग्रीस में लिखा हुआ है कि कॉटन इस कदर यूज होता था कि वहां के अरिस्टोक्रेट्स यूज करते थे कि उन्होंने कहा कि इंडिया हैज बिकम द सिंक ऑफ गोल्ड. वो लोग सारे पैसे दे दे के, क्योंकि ये कुछ लोगों ने तो यहां तक लिखा, उनसे पूछा गया ये कौन सा कपड़ा है, ये इतना लाइट भी है और सॉफ्ट भी है, ये ऊन नहीं है, चमड़ा नहीं है. तो जब उनको बताया गया तो कुछ लोगों ने लिख दिया भारत में कपड़े पेड़ पे उगते हैं, कि कॉटन का पौधा होता था उससे. फिर आप ये समझिए इस ढंग की चीजें जो होती थी. और ये जो ब्लैक पेपर,
ब्लैक पेपर का एक संस्कृत में पर्यायवाची है यवन प्रिय, जिसको काली मिर्च कहते हैं। इतना एक्सपोर्ट होती थी यूनान में कि इसका पर्यायवाची बन गया यवन प्रिय। तो इसलिए फैक्ट ये था कि सब कुछ यहां से आउटवर्ड गया। और देखिए थ्योरी क्या है, आप कहेंगे वो आर्कटिक वालों में एक थोड़ा सा इंडियन जीनोम का कनेक्शन मिलता तो हो सकता वहां से आए हों। फिर उन्होंने कहा नहीं, एक थ्योरी है कि 10% ऑस्ट्रेलिया वालों में मिलता तो हो सकता वहां से आए हों। नहीं, वो थोड़ा सा अफ्रीकन में भी कनेक्शन मिलता हो सकता वहां से आए हों। फिर वो सेंट्रल एशिया। भाई ये सब कुछ कह रहे हो, ये क्यों नहीं कह रहे हो यहीं सब जगह गए थे? ये मानने को तैयार नहीं है। और मैं आपको इसका प्रूफ के साथ बोलता हूं, जो मैंने पहले भी बोला है, एंशियंट चाइनीज में इंडिया का नाम क्या है? ट्यानजू, TINZSU। और ये विकिपीडिया पे मत जाइएगा क्योंकि उस पर तो लेफ्टिस्टों ने मैनेज कर रखा है। आप जाएंगे तो ट्यानजू को क्या लिखा हुआ होगा कि इट इज अ नेम गिवन बाय एंशिएंट चाइनीज टू इंडिया एंड दे लुक इंडिया इनटू 5 पार्ट्स, ईस्ट वेस्ट, वो सब कहानी सुनाएंगे। आप चाइनीज भाषा में जाइए, TIN का मतलब है हेवन, जो का अर्थ है सेंटर। दे कंसीडर इंडिया एज द सेंटर ऑफ हेवन। और एंशिएंट चाइना में ये कहावत थी कि नॉलेज कम्स फ्रॉम वेस्ट। एंशिएंट चाइना में ये कहावत थी कि अगर अच्छे कर्म करोगे तो वेस्ट में जन्म मिलेगा, पर्वत के उस पार। अब आप आइए, मैं आर्थर शोपेनहावर का तो मैंने कोट ही कर दिया। ही सेड दैट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम। और तमाम अरबिक राइटर्स जो 10th सेंचुरी के थे, इब्न कसरी, इब्न अल खल्दूम, इब्न तबरी, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं उनमें सब में उन्होंने ये लिखा है कि व्हेन आई लुक टुवर्ड्स इंडिया आई फील ए कूल ब्रीज ऑफ नॉलेज कमिंग फ्रॉम देम। आप समझिए तो हम ऐसे ही विश्व में फाउंटेन हेड ऑफ नॉलेज, फाउंटेन हेड ऑफ टेक्नोलॉजी थे। अब आप कहेंगे कि अगर ऐसा था तो हमारा डाउनफॉल क्यों हो गया? तो फिर मैं आपसे कहूंगा, अगर हम गुलाम थे तो फूड फॉर थॉट कहते थे 560 रियासतें कहां से आ गई? इफ एवरीथिंग वाज अंडर ब्रिटिश इंडिया तो एक पावर ट्रांसफर से हो जाना चाहिए था। और फिर एक और आपको बात बता दूं, जो एजुकेशन के बारे में कहा जाता है, सबसे प्रिंसली स्टेट्स में एजुकेशन का स्टेटस अच्छा था। इंडिया में सबसे हाईएस्ट लिटरेसी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बड़ौदा, ट्रावनकोर और मैसूर में थी। आपको पता है सबसे पहला साइंस का इंस्टीट्यूट किसने बनाया? नॉट बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलोर बाई मैसूर महाराजा। आपको पता है कि वर्ल्ड में यूरोप के बाहर लंदन के बाद पहला शहर जिसमें की इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रीट लाइट पे हुई वो 1902 में बेंगलुरु, क्योंकि 1894 में शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट, यानी पावर क्रिएट करना शुरू हो गया 1894 में भाई महाराजा ऑफ मैसूर। पहले इंजीनियर विश्वेश्वरैया, बहुत सारी चीजें हैं इवन इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड। और आपको पता है कि ये जो सीवी रमन जिनको नोबेल प्राइज मिला था, तो हम कहते हैं ना फर्स्ट इंडियन हु गॉट द नोबेल प्राइज। No, it's not truth. It is half truth. He was the first non-European, first non-white to get a Nobel Prize of any branch of fundamental science. और लास्ट में आपसे कहता हूं, जो अभी आपने बताया, JC बोस 2012 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ने कहा कि एडिसन को क्रेडिट तो दे दिया जाता है पर ये बराबर से इसमें क्रेडिट जेसी बोस का है, उन्होंने पेटेंट नहीं करा पाए थे। पर जेसी बोस को एक और चीज़ के लिए भी क्रेडिट मिलता है कि उन्होंने पहले कहा था पौधों में जान होती है। वो जानते कहाँ से आया था? जेसी बोस ने खुद लिखा है कि मेरी माँ मुझे बताती थी कि रात के समय पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए, उस समय ये सो रहे होते हैं, इनके अंदर भी वैसे ही कॉन्शियसनेस है जैसे हमारे अंदर। वहाँ से वो इंस्पायर हुए और फाइनली उन्होंने प्रूव किया। इसलिए हमारे यहाँ साइंस, ट्रेडिशन, एक्सपोर्ट ऑफ नॉलेज। और लास्ट में कहूँगा, हमारे यहाँ जानते क्या बोला गया? अगर आर्य बाहर से आए थे तो ये श्लोक क्यों लिखा गया? गायन्ति देवः किल गीत कानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागा। देवता जिसकी स्तुति में गीत गाते हैं वो भारत भूमि धन्य है। स्वर्गापवर्गास्पद भाग हेतो भवंति भूया पुरुषा सुरत्वात्। स्वर्ग और अपवर्ग के समस्त सुखों को भोग करने के बाद इस भूमि पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने को लालायित रहते हैं, क्योंकि ये मोक्ष यहीं से मिलता है, मुक्ति यहीं से मिलती है। इसीलिए भारत को मोक्ष भूमि कहा गया है। इतना प्रेज कोई बाहर से आया होगा दूसरी जगह के लिए करेगा और अपनी जगह का नाम ही नहीं लेगा, जबकि जो दूसरे वाले आए हो तो पूरा बताते हैं कि हम यहां से आए थे, देखो वो अच्छा है, ये अच्छा है। मगर आर्य ऐसे बाहर से आए कि वो अपनी जगह का नाम भी नहीं बताते हैं। नदियां, पेड़, प्लेस, फल, फूल नाम से लेके और गीत भी यहीं के गाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कभी कभी जो ये सारी बातें बताई गई, हमारे अंदर इस अमृत काल में कॉन्फिडेंस आना चाहिए
कि भारत का वक्त आ गया है, जिसे एक पंक्ति में कह के समाप्त करता हूं। आप सबको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा यही समय है, सही समय है। तो भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही। भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। Just want to add in this to him that even for environmental theory today, we are going back to the Panchabhutas. We are the only ones who talked about 5 elements. Nobody else spoke. So please understand this. And as he said, what to say, temple architecture in India is very scientific. No other structure is. Do you know Surya Mandir? Surya was suspended in mid-air. Do you know that? Do all of you know in Konark he was never, and it was due to magnetic forces. Do all of you know that? Or even the Brahadishwara temple, the biggest Shiva temple built. And here you have a Vimana of nearly 80 tons lifted to the top. How did they do it? Konark also, that's why I'm saying you suspend. If you see literally all this, or even the Meenakshi, you don't have the shadow of any of the Gopura falling inside the temple on any part of the day. So please understand, we had all this, and this is something that we should be proud of, because this was architecture, engineering. Today we are building bridges with Western knowledge, you're getting cracks within 5 years. Have you please seen how we built our old temples? The oldest dam. एक crack भी नहीं है. जाकर देखिए. I would request people to deconstruct these and see how we did it. So this is very important. I would also end, this is a transformative period, and you young people are living in a period of great transformations. Ask our audience to give a standing ovation to both our very, very, very learned panelists. So, Dr. Sudhanshu Trivedi and Professor Shanti ji are in itself Indian knowledge system. The knowledge they both have, the knowledge they are articulating across India and across the world, that itself is very, very commendable and appreciated. And I would say you're both national treasures. Sudhanshu ji ने तो क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा वो खुद ही जानते हैं, पुराण से लेके मार्क्स से लेके जो नॉलेज और उनका रिमेम्बरेंस है. एंड आई थिंक ही हैज़ अ फोटोग्राफिक मेमोरी कि एक बार कोई चीज़ देख लेते हैं तो भूलते नहीं हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो साइंटिफिक फैक्ट, ये होती है कुछ लोगों में, ये नहीं है कि नहीं होती है. एंड ऑफ कोर्स प्रोफेसर शांति श्री जी तो academic scholar and so learned and so privileged and honored to have such a rare combination of both of you here today with us. And we are so thankful. Thank you so much. Thank you, ladies and gentlemen. With this, we come to the end of this most interesting panel discussion on Indian knowledge system. We are indeed very proud when we read in paper what under the leadership of ma'am she has done to Turkey MOU ko dhwast karke. Thank you, ma'am. I felt so good to read that news. Thank you. Thank you. Yeah. Now we also take pride in calling ourselves as alumni of JNU. Thank you, ma'am. Dr. Trivedi, thank you so much, sir. आपका समय देने के लिए, you have been so kind in your busy schedule. You have come here. Big round of applause for both the speakers. Once again, thanks to the team of World Intellectual Foundation, and sincere thanks to my team of DIC, those who are in blue jacket like me. With all their support, we have organized this function. As we come to the end, may I all request you to rise for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य
हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे